So now आज लीन प्रेप आपके लिए लेके आया है someone who has genuinely figured out this UPSC game, and I am not kidding. IIT Kanpur alumnus who has also cleared multiple exams such as AIMS, GATE, Engineering Services, and Forest Services, और फिर cleared UPSC Civil Services 2 times with All India Rank 242 and All India Rank 75. Same person, same 24 hours, वो भी while doing this full time job. सिर्फ एक चीज बदली, he wrote differently, and this is exactly what we are trying to do at Lean Prep. Today, he is here to teach you that same shift. And also, like, one is important note that we will be taking doubts at end of this session. So let's welcome Mr. Rahul Sekar. So Mr. Rahul Sekar, the floor is yours. Thank you. Hello everyone. Hello Avinash. Thank you for such a generous introduction. हाय, कैसे हैं सभी लोग? हाय हाय सब लोगों को जिन्होंने कैन यू प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग? सी रिकॉर्डिंग आई थिंक अभी तक इट इज टू मच लॉजिस्टिकल इशू एज ऑफ नाउ, या फिर वट एवर इट इज, वी वांट इट टू बी firstly giving privy to the people who have taken out time, taken out effort to fill the form to join the session. Namaste. ठीक है. We can do all this. Stuck lag. Am I audible? Yes, Rahul, Yes. you are audible. Yeah. Cool. हाँ. ठीक है. So yes, yes. ठीक है. I am audible. Yes, it is good that you people are interacting. You people are making this session two-way process. What I understand is between prelims and mains. Yes. Please आप लोग थोड़ा सा अगर reacts and comments थोड़ा सा रुक जाएंगे तो it will be easier for me to concentrate. ठीक है? Can you please make this chat section off for the time? Yes, Avinash, can we do this? If you can make it off for say entire duration of the session, or when I ask questions, then people can answer through the chat. Okay. Sure. Sure, Rahul. So, uh, what I understand is mains is a very not a very tough stage, to be very honest. ठीक है, मेंस इज जर्नी जहां पर आप एफर्ट लगाएंगे तो योर मार्क्स विल इंक्रीज. दैट मे नॉट बी द ट्रू फॉर प्रीलिम्स में इफ यू हैव द राइट एप्टीट्यूड और राइट लॉजिकल अप्रोच, conceptual clarity, so you might not need even extra time to clear the prelims. But if you have such issues, you might not even clear it in consecutive attempts. But in mains, your marks gradually increase. But our idea is to cater to the people whose speed of progress, speed of growth has been lesser than what it should have. Say, अगर कोई 1,000 hour efforts लगा करके या 1,000 hour efforts लगा करके 800 पहुंच रहा है, तो why are some people stuck at 650 or 600 in mains? And that 100 or 120, 150 marks is the actually the difference between getting selected and being out from the mains itself. ठीक है? So we will try to tackle all this, and I think we can start right now. It's 5:40, and most of the people must have joined by now. Okay. So yes, I welcome you all again, and let's hope it will be a worthy session for you all. Okay. And all the doubts, all everything we will cater at the end, and if it means whatever time it will take, we will be patient. Okay. Let us start. Okay. Today's session will be mostly focused on what aspect. In other four sessions, we will be focusing on how aspect, how to achieve that end goal that we are trying to achieve. And today we will be focusing what is actually happening in the answer writing or entire GS 1 to 5 or even beyond that. ठीक है? See, जैसे कि कुछ सालों में देखा जा रहा है 2022 2023 तक it was a bit different in the way that 780 was considered as an interview proof score for selection. ठीक है, 780 मार्क्स जिनके आ जाते थे, दे वर ऑलमोस्ट सिक्योर कि दे विल गेट सेलेक्टेड. और 825 फॉर IAS, the people who do you getting 825 marks, they would be considered as almost sure that they will get IAS. But that is not the case now. इंटरव्यू और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है. ये सारी चीजें 20 मार्क्स से शिफ्ट हो गई हैं कि now 800 might be an interview proof score for selection and 845 say for example for IAS, because इंटरव्यू में हम देख रहे हैं कि 120 से लेकर के
220 तक सारे मार्क्स आ रहे हैं। ये सही है गलत है, दैट इज अप टू यूपीएससी टू डिसाइड। एंड ये मैंने पेपर्स के नाम लिखे हैं। ये कोई बेस्ट स्कोर्स के रेंज नहीं लिखा है, ये वो रेंज लिखा है जहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल जीएस में 480 टू 520 का जो रेंज है, जीएस प्लस एसए ऑफ कोर्स, पहला हो गया। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए आप अगर सारे बेसिक्स अच्छे करेंगे, ठीक है, इफ यू डू ऑल द बेसिक्स राइट, इफ यू फोकस moderately on content, moderately on structuring and presentation, you will fall in this zone and do significant amount of practice. So these are the basics for mains। and इसके ऊपर एक रेंज मान लीजिए 520 टू 550। अब आप बेसिक्स के बाद कुछ स्टेप आगे बढ़े कि आप वैल्यू एडिशन पे ज्यादा फोकस करें, प्रेजेंटेशन पे और ज्यादा फोकस करें, तो आप इस रेंज में फॉल कर जाएंगे। एनीथिंग बियॉन्ड 550 आई बिलीव इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लक। सेम ऐसे सेम एथिक्स के आंसर में 120 भी आ सकते हैं, 135 भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे में 110 मिले या 125, कोई डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर टू एग्जामिनर। बट 7 पेपर हैं, 5 पेपर हैं, तो इसमें मोस्ट लाइकली लक नेगेट हो जाता है, किसी में अच्छे मिल सकते हैं, किसी में बुरे। बट इस रेंज तक वेरी इजीली पहुंचा जा सकता है अगर आप तो ईयर राउंड प्रिपरेशन करते हैं, और या जैसे सिस्टमेटिकली अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कोई बहुत मेजर इशू नहीं होता है। ठीक है, बट स्टिल वी फाइंड पीपल की हु आर स्टक इन द रेंज ऑफ 400 टू 480 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दे आर द पीपल हु, एंड ऐसा नहीं है कि कम होते हैं लोग। I have met a lot of people in last 4 5 months who have been say giving 4 mains but still stuck in the range of say 600 to 750 mains entire papers। तो इन चीजों को अपने को टैकल करना है। वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ दी सेशंस इज कि इस कैटेगरी में, इस जोन में लोग कम फॉल करें। एंड सेकेंडली, फॉर द बिगिनर्स हम ये चाहते हैं कि क्या जो इनिशियल आंसर राइटिंग में इनर्शिया होता है उसको अपन दूर कर पाए, कि लेट अस गेट स्टार्टेड, द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इस चीज के लिए मैंने एक फुट नोट दिया है सारे पेज में। फास्ट एग्जीक्यूशन बीट्स परफेक्शन ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट। जैसे मैंने 4 5 पोस्ट भी लिखे होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने देखा हो, तो सबका मीनिंग यही है कि बी मैथमेटिकल, बी प्रोग्रेसिव, एंड कीप ऑन डूइंग द वर्क रादर देन फोकसिंग कि आप एक परफेक्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब लिखना शुरू करेंगे, एंड दैट परफेक्ट स्टेज एक्चुअली कभी आता ही नहीं। तो इस फिलॉसफी के साथ अपन आगे बढ़ने वाले। मेंस के आंसर राइटिंग में आई बिलीव 3 कंस्ट्रेंट्स है। ये क्या होता है, ऐसे ही काफी आप आंसर राइटिंग में डायग्राम्स भी बना सकते हैं, ये सब हिंट भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे करा जा सकता है। या फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंटेंट, सेकेंड इज स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड इज टाइम आस्पेक्ट। कंटेंट इज समथिंग वी कैन नॉट डिस्कस हेयर इन इंटायरिटी। 4 जीएस पेपर हैं, 14 15 सब्जेक्ट हैं। बट आई कैन गाइड यू कि हाउ यू कैन एक्सेस द रिसोर्सेज, व्हाट रिसोर्सेज आर एक्चुअली गुड इनफ। ठीक है, एंड व्हाट रिसोर्सेज आर एक्चुअली not just holistic but also concise in nature। Third is structuring and second is structuring and presentation। This is the major focus हमारे सेशंस का जो रहेगा, ताकि इससे क्या सॉल्व हो जाएगा कि अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है, यहाँ पे अगर आप टाइम ले लें और यहाँ पर मार्क्स ले लें, ठीक है, तो अगर सब लोग तो यहाँ 7 से फॉर एग्जांपल 700 पे सेचुरेट कर रहे हैं, तो आप कैसे उनसे फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, एंड आपका सेचुरेशन 820 या 800 या 850 इस रेंज में पे आए। ठीक है, ये सब इंडिकेटिव नंबर्स हैं, कोई फुल फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर फोकस रहेगा। थर्ड जो होता है टाइम, टाइम इन ये दूसरा टाइम है, ये है ईयर में या मंथ में, ये है मिनट्स में, मिनट्स में जितने आपको आंसर करना है। ठीक है, इट इज सेड कि 7/11, 7 मिनट फॉर 10 मार्कर, 11 मिनट फॉर 15 मार्कर। ये एक रफ एवरेज आता है। बट इसमें भी अपन जब लास्ट सेशन में या लास्ट की तरफ देखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, क्या एक बेटर अप्रोच रहता है कि आपके मार्क्स मीन्स एग्जामिनर को ज़्यादा, आपके आंसर एग्जामिनर को ज़्यादा अपील करें। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वी विल towards the end see कि what should be the sequence या what should be the approach through which answer should be paper should be answered। तो वहां पर वी विल सी कि हाउ कैन दिस फैलेसी बी टैकल्ड, कि क्या सभी क्वेश्चंस में 7 मिनट की जरूरत है। ठीक है,
या क्या शुरू वालों को ज्यादा दे सकते हैं या कम दे सकते हैं लास्ट वालों को, जो भी है, ठीक है। वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द डिस्कशन। वी सॉ कि क्या क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं, उनमें से उन रिस्क को अगर आप अवॉइड करें तो इन्हीं को मैंने बेसिक्स कहा था कि इफ यू डू द बेसिक्स राइट यू विल फॉल एटलीस्ट इन द जोन ऑफ 480 to 520. If you do basics plus extra effort, you will fall in the zone of 520 to 550. And basics plus extra plus some degree of luck might push you beyond 5. तो सबसे पहला चीज है, when you are writing, ठीक है, particularly as a beginner stage, आपको टाइम का टेंशन लेना ही नहीं। टाइम का टेंशन मीन 7/11 को आप अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जो लोग 2026 में मेंस लिखेंगे वो मान लीजिए 1 जुलाई या 10 जुलाई 2026 तक प्री के बाद दे शुड नॉट वरी अबाउट कि उनका पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पेपर हमेशा कंप्लीट होता है, पेपर हर कोई कंप्लीट करके आता है। बट इशू ये आता है कि क्या अगर आप सिर्फ टाइम पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं तो यू विल फॉल इन द रेंज की आपके 10 में से 3 या 4 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, एंड दिस विल एवरेज आउट टू 85, मीन्स अबाउट 85 मार्क्स पर आउट ऑफ 250, and this may not be sufficient. 75 to 100 basically, let us say average is 85. So but योर गोल इज कि आपको 4.25 से 6 या 5.5 इस रेंज में मार्क्स आए, ठीक है। तो दिस माइट एवरेज आउट टू समथिंग अराउंड 110 to 115 मार्क्स आउट ऑफ 250, एंड दिस 20-25 मार्क्स इज एक्चुअली द गेम चेंजर। हमको वी आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू अवॉइड कि वी डू नॉट फॉल इन द रेंज ऑफ 600 to 750 इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द मेंस। तो पहले आपको स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन पे ज्यादा एम्फेसिस देना है कि व्हाट इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या यूनिवर्सली बेस्ट आंसर। आप क्या उस आंसर के स्टेटस पे पहले पहुंच पा रहे हैं या उसके साथ एक्वेंटेंस डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अपन टाइम पे लास्ट के 1-1.5 महीने में फोकस करेंगे। जो लोग 27 में लिखने वाले हैं वो लोग तो एटलीस्ट 1 जुलाई या टिल द एंड ऑफ प्रीलिम्स 2027 कोई उनको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि टाइम में हो रहा है कि नहीं। बट ये जरूर लोड लेने की जरूरत है कि क्या वो मोर एंड मोर डायमेंशंस ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो क्या कहते हैं डायग्रामेटिक या विजुअल एक्सप्रेशंस बेटर कर पा रहे हैं या नहीं, क्या वो मोर नंबर ऑफ क्या कहते हैं पॉइंट्स या फिर हेलो इफेक्ट अभी अपन आगे देखेंगे वो कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये टाइम एम्फेसिस पे अगर आप अभी के लिए या एटलीस्ट प्री के एंड तक 2027 वाले और 10-15 जुलाई तक मेंस के एंड इस साल जो लोग मेंस देंगे वो लोग अगर इसका लोड नहीं लेते हैं तो इट विल हेल्प देम टू बीट दिस मिडिल इनकम ट्रैप जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में। सेकंड रिस्क इज इनर्शिया। इनर्शिया मींस मींस टॉक टू पीपल एंड या फिर जैसे आप लोगों ने रिव्यूज भी दिए थे उसमें भी था कि पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट टू राइट या जो भी है, ठीक है। तो आई वुड से कि आपको आज तो पेपर लिखना नहीं है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन 2027। आपको आज तो पेपर लिखना नहीं है, 1.5 साल बाद लिखना है। अगर आज आपके 10 में से 2 नंबर भी आ गए 2 आउट ऑफ 10, ठीक है, या फिर 125 नंबर का आपने पेपर दिया उसमें से 25 ही आए, तो क्या है, कौन सी बहुत बुरी चीज हो गई, ठीक है। आपको आज तो है नहीं ना एग्जाम, बट यू हैव टू स्टार्ट। और उसको इनिशियल इनर्शिया कैसे दूर हो उसके लिए अपन आगे भी फोकस करने वाले हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट। इट इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल एग्जाम, ठीक है, कि आप एक परफेक्ट स्टेट ऑफ नॉलेज में पहुंच जाएं वहां के बाद आंसर लिखना शुरू करें। दैट टाइम विल नेवर कम बिकॉज द सिलेबस विल इवॉल्व, द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल इवॉल्व, एंड देयर विल ऑलवेज बी रैंडमनेस इन द एग्जाम। सो इट इज बेटर टू स्टार्ट एट द अर्लीस्ट स्टेट एंड देन फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसीलिए कल मैंने आइटरेटिव लर्निंग वाला पोस्ट भी डाला था, या पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एंड एक्ट, ठीक है। थर्ड इज नोट मेकिंग। See, I honestly believe कि one pager, yes, one pagers are definitely helpful, ठीक है, but you should never make them. Of course, this is a bit unconventional. I have heard कि one pager तो compulsory ही है, ठीक है। It helps in developing thematic thinking, या क्वेश्चन पेपर में most of the questions in UPSC mains are of the nature how is theme A linked to theme B, मीन्स इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, कॉजेस, इम्पैक्ट, क्या कहते हैं, सजेस्टिव रिफॉर्म्स ऑफ थीम ए थीम बी, ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है, उनको लिंक करते हैं। और ऐसे केस में अगर आपके पास दोनों थीम के नोट्स हैं तो आपको हेल्प हो जाता है, ठीक है। आई डू ट्रूली अप्रिशिएट दैट, बट दिस इज नॉट 2018 और 2020, ठीक है। द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज इन दिस एज हैज बीन ट्रूली डेमोक्रेटाइज्ड, ठीक है।
देयर इज नथिंग दैट यू AI कैन नॉट डू। ठीक है, आई वाज डिस्कसिंग विद अविनाश एंड अदर पीपल एंड दे आर सेइंग कि ठीक है, यहाँ पर अपन भी नोट मेकिंग फीचर वगैरह कुछ कुछ सोच रहे हैं। वैसे भी आप स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स में देखिए, वहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने तो कभी नहीं बनाया ये 2025 में। मैंने ये जैसे आप लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, जैसे वाजीराम पे स्मैशर है, ठीक है, कंपनी जो जिसके इतना रिवेन्यू है, दे कैन, और आप लोग इनिशियल स्टेज पे हैं, दे कैन हायर एक्सपर्ट्स एंड इस क्वालिटी के नोट्स बन पाना, इट इज वेरी टफ। ठीक है, एंड इवन इफ वी आर मेकिंग दैट, मतलब मैं किसी की एबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स जस्ट कॉमन सेंस। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि आप मान लीजिए पॉलिटी के नोट्स बनाने गए, तो आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज के बाद सिलेबस, न्यूज या मैगजीन्स जो भी है, इतनी सारी चीजें करेंगे। इसको बनाने में आपको लगेगा 15 से 20-25 दिन एटलीस्ट। और ये बात अप्रिसिएट करी जा सकती है, करनी चाहिए मुझे, कि अपने नोट्स बेहतर समझ आते हैं, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन आप इस स्मैशर या जो भी वन पेजर नोट्स कहीं से आप AI से जो भी करवाते हैं, उसको आप इस 20 दिन में, 15 दिन में एटलीस्ट 7-8 बार पढ़ जाएंगे। तो क्या, अगर आप 3 बार भी पढ़ लेते हैं, तो क्या एक बार खुद से बनाने के बराबर वाली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाएगी? डेफिनेटली आ जाएगी। और उसमें भी जो डाउट आ रहा है उसको आप GPT, जेमिनाई, यूट्यूब पे क्लैरिफाई करा लो। ठीक है, डू नॉट गो फॉर री इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ठीक है, एक कहावत है, हाँ, इंग्लिश में, कि डू नॉट डू समथिंग विच समवन एल्स कैन डू फॉर यू। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यू विल बी फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट कैन गिव यू हायर रिवॉर्ड। नो वन इन दिस एग्जाम इज गोइंग टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर यू। ठीक है, नो वन इज गोइंग टू डू द रिविजन वर्क फॉर यू, no one is going to do answer writing for you. So you should focus your time and energy lesser on making notes and more on say these aspects, revision, brainstorming, etc. ठीक है, I hope I am clear. Is the crucial part of the discussion. ये यहाँ पर आपको ना थोड़ा अटेंटिव रहना चाहिए, एंड आई विल मेक श्योर कि बाद में अगर रिकॉर्डिंग आए भी तो ये पार्ट तो ना आए। दिस इज प्रीव्यू इंफॉर्मेशन, या दिस दिस कैन एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर मीन्स। ठीक है, देखते हैं आगे। अगर अपन कंपैरिजन करें ना, यूपीएससी का इवैल्यूएशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इवैल्यूएशन, हु आर द इवैल्यूएटर्स इन यूपीएससी? दे आर यूजुअली प्रोफेसर्स, एंड प्रोफेसर्स आर एक्सपर्ट इन वन सिंगल डोमेन। एंड हु आर द इवैल्यूएटर्स हियर? पीपल राइटिंग टू मेंस। ठीक है, एंड दे हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एंटायर जीएस। यहाँ पर क्या होता है, वन पर्सन इवेलुएट्स एंटायर पेपर। ठीक है, सेम यहाँ पर। ठीक है, बट ये दिस पर्सन इज एक्सपर्ट इन अ सिंगल डोमेन। यू सी, पेपर हुआ, मान लो अगस्त एंड में पेपर हुआ ना, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगस्त एंड के बाद पहले आपकी हिंदी और इंग्लिश की कॉपी चेक होगी, 15,000 लोगों की। ठीक है ना, 15,000 लोगों की हिंदी इंग्लिश की कॉपी चेक होगी। उसके बाद जीएस और एंड ऑप्शनल की चेक होगी। ठीक है, इस काम में मान लो 15-20 दिन लगेंगे। जीएस ऑप्शनल की, और फिर रिजल्ट आ जाता है, करीब 2.5 महीने में रिजल्ट ही आ जाता है। 5-10 दिन कंपाइलेशन में लगेगा। 1 महीना मान लो कॉपी लाने में, हिंदी इंग्लिश चेक होने में, रिजल्ट कंपाइलेशन में चला गया, तो 1.5 महीने, 45 डेज में 15,000 कॉपियां चेक हो जा रही है पर पेपर। ठीक है, तो यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि कॉपीज को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज यहाँ पर कोचिंग में 1.5 से 2 घंटे में पूरी कॉपी, 20 क्वेश्चन कॉपी आंसर शीट इवेल्युएट की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि काफी फास्टली इवेल्युएट हो रही है, एंड दैट टू बाय ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट ओनली इन अ सिंगल डोमेन। ठीक है, इफ अ पर्सन इज, से फॉर एग्जांपल, प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, he or she may not be very well acquainted with economics or internal security, ठीक है, or disaster management for that matter, but he or she will be evaluating the entire GS3 paper. So, and that too in a very quicker pace. आप एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए, इससे आपको मीन्स, एक रूल ऑफ थंब ये है, लेट अस से इसको अपन 10 सेकेंड रूल कहते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड रूल। ठीक है, 10 सेकेंड रूल में ये है कि अगर आपका कोई पर्सन आपकी एक आंसर शीट को सिर्फ 10 सेकेंड के, मतलब एक पेज को 10 सेकेंड के लिए देखता है, तो उसको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव टू सेल्फ इवेल्युएट, इफ यू हैव टू इम्प्रूव फास्टर देन अदर्स। ठीक है, 10 सेकेंड रूल मानते हैं इसे, कि अगर कोई आपकी आंसर शीट का एक पेज 10 सेकेंड के लिए देखता है, what all elements will be visible to him or her?
ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू फोकस lesser on what to do and more on how to do, या what all elements visibility is the single miss. इस डिस्कशन से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि visibility is the single most important factor, particularly from the for the people who have say who are in their second attempt, या when who are in means जिनका 2027 में first attempt है but content part has been completed. So whoever is contented, या whoever is fulfilled from the content aspect, the visibility is the single most important factor in the examination. इस पे ही अपन इस बेसलाइन को मानते हुए कि visibility is the single most important factor, and how can we enhance that visibility, that becomes the game changer कि why someone gets 340 or why someone gets 440. ठीक है, if your average 85 or 110 per GS paper, ठीक है, visibility is the single most important factor. I hope it is clear to everyone. Okay, I don't think the comment is enabled. Can we enable the comments for 2 minutes to see if people have some Yes. doubts there? Yes, हाँ enable कर दिया है. ठीक है, तो हैंड राइटिंग एंड जरूर रिकॉर्ड नोट्स लेने अभी या बाद में मिल जाएगा यार. दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग कि ना अगर आप बैठे हैं गुड visibility by highlighting points everything. I will be talking on how to enhance the visibility. This is just setting a north star की what all actually matter. ठीक है, हैंडराइटिंग कितनी मैटर करती है देखो यार, नो वन इज एक्सेप्ट इन दिस मार्केट, बट हैंडराइटिंग एक्चुअली मैटर. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स means ठीक है, for obvious reasons people do not accept it, but handwriting actually matters. It matters to what degree, but that is not certain. But what if evaluate AI gonna evaluate? AI can evaluate, and it will means for practice aspect you can definitely use it. And how fast UPSC is from adopting AI, that is something I cannot comment. We are still using the means conventional pen paper test in prelims. ठीक है, it is, has still not switched to online for prelims. So how far UPSC is there from adopting AI, that is something uncertain. But AI definitely helps in the preparation aspect, and it can definitely evaluate more in more certain means more objective parameters. Means answer should be more diverse. Yes, we will be. मैं देना है तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना है? अभी तक जो डिस्कस हुआ है उस पर क्वेश्चन रखें. वी विल आंसर ऑल द डाउट्स एट द एंड. ठीक है, हाउ यार handwriting means legibility, yes, at least legibility honi chahiye, and if it is beautiful it will definitely add value also. So what about mechanical, how to prepare this? ठीक है, mechanical का we will, how many paper you give for 10 second rule. See, abhi we are just setting the tone की what is to be done. 5 सेशंस है, एंड हो सकता है 6-7 घंटे में बैठेंगे अपन, तो इट विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वही सब मेन कोर डिस्कशन है. ठीक है, अभी मैं बेसिक बेसिक हाउ टू मेक आवर आंसर स्टैंड आउट, सी उसी के लिए तो अपन डिस्कशन करने वाले हैं. वी आर मैचिंग द रिदम विद यू, थैंक यू. एंड आई थिंक चैट अभी क्लोज कर देते हैं. आई हैव गॉट हैंड राइटिंग इम्प्रूव कैसे करें यार, वो अलग चीज है. उसके लिए एक 4 लाइन वाली कॉपी खरीदनी पड़ती है थोड़ा, से 15 मिनट पर डे दे दोगे 4 लाइन वाली कॉपी खरीद के तो हो जाएगा इम्प्रूव. बाकी अभी चैट को डिसेबल कर देना चाहिए. ठीक है, लेट अस गो अहेड विद द. तो यही 10 सेकंड के रूल को मैं हेलो इफेक्ट कहता हूँ, चलो. ठीक है, हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट क्या होता है कि इफ यू आर गुड एट वन थिंग, people assume that you are good at other things. People do not expect Michael Jordan to be consuming drugs or to be fixing match. ठीक है, पीपल जो लोग स्टूडेंट्स क्लास में टॉपर होते हैं, टीचर्स उनसे ये मतलब उनको एज्यूम कर लेते हैं कि दे आर नॉट मेकिंग नॉइज. बचपन में वो उनसे एज्यूम किया जाता है कि उनको मॉनिटर बना दिया जाता है, वो शरारत नहीं करेंगे. ठीक है, बाकियों को शरारत करने से रोकेंगे, बट इसका कोई बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है. बट दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क. This is based on the human psychology, and this is where you can actually uh, be means you can gain more than others, more marks. मैंने इसको काफी एक्सटेंसिवली इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया. डेफिनेटली मेरे पास टाइम बहुत कम था. दो पिछले 24 से 25 में मैं मतलब प्रीलिम्स से 15 दिन पहले स्टार्ट करता था एंड मेंस के एंड तक सीरियसली पढ़ता था. उसमें भी कुछ दिन छुट्टी मिल पाती थी, कुछ दिन नहीं, फुल टाइम जॉब के साथ. बट इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करने से
आई एस्केलेटेड फास्टर देन अदर्स एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। ठीक है। हेलो इफेक्ट, जैसे हमने समझा कि जैसा हमने समझा कि क्या है ये, इट्स अ साइकोलॉजिकल game where if you are good at one thing, you are assumed that you are good at other things also. ठीक है। If your answer looks uh, more visually appealing than others, it is assumed कि your content is also better. ठीक है। ये देख लेते हैं, अभी सब लोग पूछ रहे थे 10 सेकेंड रूल को अप्लाई कैसे करना है, उसके एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है उसके हेलो इफेक्ट के। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑफ कोर्स क्लियर, लेजिबिलिटी कह लो, नॉट फॉरमोस्ट, बट लेजिबिलिटी इज अ फैक्टर। ठीक है। व्हाट अदर फैक्टर्स? more number of points, single important factor, more number of points. How to generate more number of points? हम ये टेम्पलेट जब तीसरे या चौथे लेक्चर में टेम्पलेट्स की बात होगी कि कैसे कैसे टेम्पलेट्स बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वहां पर हम देखेंगे इस चीज को। ठीक है। मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इट्स अ वाइटल फैक्टर। से फॉर एग्जांपल, जब सब लोग मीन्स जब मैं 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो लोग कहते थे कि 10 मार्कर में 8 पॉइंट्स और 15 मार्कर में 12 पॉइंट, दिस इज सफिशियंट। बट बाय 2025 आई रियलाइज कि 10 मार्कर में मेरे को 14 ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट 12 to 15 एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, एंड 15 मार्कर में 20 to 25 या 18 to 25 कह लो। ठीक है। तो इस टुवर्ड्स दिस एंड मैंने वर्क किया। एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसके लिए क्या होता है, टेम्पलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के नोट्स बनाए कि आपके लिए थॉट प्रोसेस इजियर हो जाए, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स इज वन। थर्ड इज विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स में इंक्लूड टेबुलर फॉर्म फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है। इट में इंक्लूड डायग्राम्स। ये डायग्राम्स के भी मैं फोर्थ सेशन में डायग्राम्स में भी डिस्कशन है, कैसे कैसे डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और क्या क्या होता है उसका भी मैं बताऊंगा सभी को। हब एंड स्पोक। ठीक है। और क्या हो सकता है, डेट फैक्ट शीट्स या फैक्ट कार्ड्स। ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी में डू यू नो आता है, क्या आप नहीं बना सकते हैं ऐसा? और इनोवेशन कर सकते हैं आप, अगर कुछ इनोवेशन करना चाहें तो। ठीक है। कुछ लोग स्टार बना दिया, ये बना दिया, जो भी है। लेजिबिलिटी, मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। और क्या चीजें होती हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड जैसे अगर आप ये लिखने लगे कि द द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स हैज रिड्यूस्ड, अगर इसके जगह आप एक वर्ड लिखे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो दिस इज मोर अपीलिंग एंड इट कंज्यूम्स लेसर स्पेस, इट इज मोर अपीलिंग। तो ये हो गए सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। जैसे आपने लिखा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। सब्सिडियरिटी, दीज आर द प्लेसेस वेयर एआई इज द गेम चेंजर, जनरेटिंग वैल्यू एडिशन कंटेंट। क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स में रिसर्च करना पड़ जाएगा, बट यहाँ पर इट्स जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे। ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, विजुअल एलिमेंट्स, और क्या हो सकता है? कंटेंट डेंसिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी लेस पीपल एक्सेप्ट। कंटेंट डेंसिटी मीन्स कि आपकी पेज भरी हुई दिख रही है तुम्हें, पर्टिकुलरली वर्टिकली, क्योंकि कॉपी को वर्टिकली पढ़ा जाता है। ठीक है। व्हेन अ पर्सन हैज लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, when a person has lesser amount of time, he or she tends not to read the explanation aspect but read vertically कि ओके पॉइंट नंबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। यहाँ पर वर्टिकल डेंसिटी, वर्टिकल कंटेंट डेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हॉरिजॉन्टल कंटेंट डेंसिटी। इफ बोथ कैन बी देयर, इट इज बेटर। और क्या है? और ठीक है, अगर मुझे कुछ याद आता है तो हम इस पे आगे फोकस करते रहेंगे। ठीक है। अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं आगे ऐड कर दूंगा, बट मोस्ट लाइकली आपको आइडिया मिल गया है कि अगर ये सब चीजें होंगी तो आपकी जो चीज आप हाईलाइट, सब्सटेंशिएशन या वैल्यू एडिशन कंटेंट, ऑफ कोर्स आपके स्टडीज डाल रहे हैं, ये सब कंटेंट का पार्ट है, लेकिन स्टिल ये विजिबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है। मान लीजिए आपने सब्सटेंशिएशन कर रहे हैं रादर देन एक्सप्लेनेशन। सब्सटेंशिएशन में आप डेटा डाल सकते हैं, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, रादर देन एक्सप्लेनेशन। इसका एक और कारण है। ठीक है। इसका एक कारण यह है कि वो एग्जामिनर मान भी लिया कि वो एक फील्ड में ही एक्सपर्ट है, बट वो आपसे पहले 200, 500, 50, 10 कॉपियां इवेलुएट कर चुके हैं। ठीक है। अब उनके पास आप खुद ही देखिए, आप एक ही चीज को बार बार पढ़ना पसंद करेंगे क्या? ठीक है। अगर हर कोई मान लो, या ट्रांसपेरेंसी लिखा है, आपने एक पॉइंट लिखा ट्रांसपेरेंसी, अब इसको कैसे एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करके आप नया बता देंगे एग्जामिनर को? क्यों ना सीधे एग्जाम्पल ऑनलाइन आरटीआई लिख करके एक पॉइंट खत्म किया जाए। तो सब्सटेंशिएशन थ्रू डेटा फैक्ट्स एग्जाम्पल रादर देन एक्सप्लेनेशन इज आल्सो वन ऑफ द गेम चेंजर थिंग्स। ठीक है। ये और ज्यादा हेल्प इस सेंस में करेगा, क्योंकि आपको अगर आप फोकस कर रहे हैं मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एंड विजुअल एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने के,
Where will you get space and time if you are writing lengthy points? Lengthy points कोई नहीं पढ़ रहा है. Write short, crisp, and more number of points, more visual elements, so that examiner gets glued to that. So, in general, do not bore the examiner. यही एक बहुत बड़ा कारण है कि why template based essays are out of fashion now. Because if everyone is writing about, say for example, Gandhi ji या कलाम या बुद्धा या हिटलर या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या वर्ल्ड वॉर, जो क्लीशे एग्जांपल्स हैं उस पे आप आधा आधा पेज समझा रहे हैं, ठीक है. एग्जामिनर हैज रेड दैट इन 1000 कॉपीज बिफोर यू, 1500 कॉपीज बिफोर यू, ठीक है. So those things become means that is why being coming up with non cliche examples or more facts and data and examples in GS आंसर राइटिंग हेल्प. तो ये 10 सेकंड रूल को ऐसे यूटिलाइज किया जा सकता है. इसके भी निटिग्रिटीज को अपन आगे डिस्कस करेंगे, डायग्राम को या फिर क्या है, टेम्पलेट बेस्ड चीजों को, या फिर जब अपन बॉडी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन करेंगे तभी भी इन सब चीजों का डिस्कशन होगा. तो अब देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ गुड आंसर. अभी भी हम लोग व्हाट पार्ट पे हैं. हाउ पार्ट पे अपन आएंगे मोस्ट लाइकली. आज हाउ पार्ट कम हो पाएगा, चार बाकी चार सेशंस में होगा. आज अपन बेसलाइन पूरा सेट करते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए एंड आपको लगे कि ये हेल्पफुल है. तो व्हाट इज अ गुड आंसर? गुड आंसर इज, हाँ, एक चीज मैं पहले एम्फेसाइज करना भूल गया. कंटेंट या कोर, क्या कहते हैं, कोर डिमांड इज द मोस्ट वाइटल थिंग. ठीक है. ये आपको जैसे बताया था ना, 3 से 4 तक तो पहुंचा देगा. ये बाकी सारी चीजें आपको 4:30 से 5, 5:30 तक पहुंचाएंगी. ये एक एक्स्ट्रा मार्क जो है, ये आ रहा है हेलो इफेक्ट से, ये आ रहा है कोर कंटेंट से. ठीक है. यहाँ तक कोर कंटेंट में बस बात ये है कि यहाँ तक हर कोई पहुंच जाता है. दैट इज वाई वी नीड टू एम्फेसाइज ऑन दिस एस्पेक्ट. कोर कंटेंट के लिए क्लास नहीं की जा सकती, इसलिए उसको मैं कम एम्फेसिस दे रहा हूँ. बट कोर हैज टू बी आंसर्ड. एग्जामिनर आपसे पहले, यस, एक तो 10 सेकेंड रूल था. दूसरा चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे पहले बहुत सारी कॉपी इवेलुएट हो चुकी है. ठीक है. एग्जामिनर एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. बेस्ड ऑन आइटरेटिव लर्निंग की, मान लीजिए उन्होंने 5 कॉपियों को अच्छे से मान शुरू की, 5 कॉपियां इवेलुएट की. उसमें एक क्वेश्चन में कोई बंदा 7 पॉइंट लिखा है, कोई 9 लिखा है, कोई 12 लिखा है, कोई 6 लिखा है. इन सब में मान लीजिए 15 न्यू पॉइंट्स आए, 15 न्यू पॉइंट्स मिले उन्हें. ठीक है. जिनमें से 4-5 मेन पॉइंट्स हैं. तो ये एटलीस्ट आपको ये 4-5 या जो शुरू के 6-7 कोर पॉइंट्स हैं, वो तो होने ही पड़ेंगे. ठीक है. उसके बाद ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से वर्क करती है. 2 को 5 नहीं पहुंचा पाएगा ये. 2 को 5 नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन 3.5 को 5 पहुंचाया जा सकता है. यहाँ से आपको कटिंग एज मिल जाएगा, लेकिन आपको बेस कंटेंट होना पड़ेगा. उसको कैसे टैकल करना है, केटर करना है, वी विल बी, वो मैं बता दूंगा कैसे करना है. ऑफकोर्स वो चीज को यहाँ पर डिस्कस करना ही नहीं जा सकता. उसी के लिए 1-2 साल का फाउंडेशन कोर्स है मान लीजिए, या जो भी है, इतनी बुक्स लिखी गई हैं. तो कोर डिमांड को तो एड्रेस करना ही है. और आपको सिर्फ एड्रेस नहीं करना है, विजिबल बनाना है कि यस यू हैव आंसर्ड इट. विजिबल कैसे बना सकते हैं? पॉइंट्स को प्रायोरिटी दे करके. जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, उन सब्जेक्ट के पॉइंट्स को. वहां पर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स डाल करके इन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो कर सकते हैं. सिर्फ कोर डिमांड नहीं, आपको स्पिरिट ऑफ द आंसर भी करना है. स्पिरिट ऑफ द आंसर मीन्स कि अगर ये आया, डायरेक्टिव की बात हो गई. ठीक है. एनालाइज इज नॉट सेम एज एनुमरेट. Say for example, the office of governor serves as a strong linkage in the Indian quasi-federal system. मान लीजिए क्वेश्चन है, इसके बाद लिखा है एनुमरेट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकली एनालाइज. तो ये हो गया स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन. आपको डायरेक्टिव से पता चल सकता है, टोन से पता चल सकता है. जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि फूड सिक्योरिटी पे आया कि इंडिया हैज अचीव्ड फूड सिक्योरिटी, बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज nutrition security is still a distant dream. Also क्या कहते हैं, हाईलाइटेड बाय द, कौन सा इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स. तो यहाँ पर इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे एम्फेसिस है. ठीक है. जब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हंगर इंडेक्स हाईलाइट दैट इंडियाज क्या कहते हैं, प्रोग्रेस हैज बीन लॉपसाइडेड. ठीक है. क्रिटिकली एग्जामिन. तो यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्सेस पे भी ज्यादा फोकस करना है कि ये इंडेक्सेस कैसे फ्लॉड है.
ठीक है, क्वेश्चन का पूरा स्पिरिट चेंज हो जाता है टोन से। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आती हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जब जिस दिन आप पेन पकड़ेंगे या जब आप 100 आंसर लिख चुके होंगे तब ये नहीं आएगा। यू नीड टू सिट डाउन, यू नीड टू बी आइटरेटिव, प्रॉपरली फॉर्मेटेड। प्रॉपरली फॉर्मेटेड इज अनदर aspect of हेलो इफेक्ट ओनली, बिकॉज प्रॉपरली फॉर्मेटेड मतलब कि आप क्वेश्चन की जो हेडिंग्स हैं ऑलवेज ब्रिंग देम फ्रॉम क्वेश्चन इटसेल्फ। दिस हेल्प्स बिकॉज इफ द एग्जामिनर इज सीइंग कि क्या इस पर्सन ने ये वाला पार्ट एड्रेस किया है कि नहीं। ठीक है, तो इट बिकम्स इजियर फॉर द इवेल्युएटर टू जज कि आप ये हेडिंग एड्रेस किया है या फिर प्रॉपरली फॉर्मेटेड मींस सीक्वेंस ऑफ आंसरिंग शुड नॉट बी एब्सर्ड। पहले जैसे क्वेश्चन में एक अंडर द कोर्स नॉन कोर डिमांड लिखा हुआ है, तो आप पहले नॉन कोर डिमांड को एड्रेस कीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको सिग्निफिकेंस बताना है, फिर चैलेंजेस बताना है मान लीजिए, फिर वे फॉरवर्ड। तो ये एक फॉर्मेट है। इस सीक्वेंस को फॉलो करने से इट बिकम्स easier फॉर द एग्जामिनर टू इवेल्युएट कि whatever has been asked has been answered by the person। ठीक है, तो दिस ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि प्रॉपरली फॉर्मेटिंग द आंसर। ऑफ कोर्स उसके बाद यहाँ तक आप बेस मार्क्स हो गए 3 से 4। उसके बाद एक्स्ट्रा 1 मार्क हेलो इफेक्ट से। आई एम नॉट saying कि कोर कंटेंट या that does not matters, but that is not the differentiating factor is my point। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोर नॉलेज इज इनवैल्यूएबल। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हाउ हम कैसे करें, क्या करें, हाउ डू वी प्रिपेयर। तो जब आपको ये अब ये टारगेट फिक्सिंग या ऐसा कुछ देख लेते हैं, वी आर या हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट एंड, कि आप कैसे दोनों चीजों को हैंडल करें। ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट एंड। लेट अस टॉक अबाउट 2027 पीपल फर्स्ट, बिकॉज 2026 वाले तो अभी तो प्री पे होंगे ना यार। अब देखिए 3 चीजें थी। कंटेंट, 27 में भी दो टाइप के लोग होंगे जो अभी बेसिक सिलेबस कर चुके होंगे, बेसिक सिलेबस थ्रू इधर फाउंडेशन कोर्स और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। कुछ लोग होंगे जिन्होंने जो अभी 2027 का मतलब अभी फाउंडेशन कोर्स या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के पेज में होंगे। दूसरा चीज हाँ, पहले इस कैटेगरी के लिए देख लेते हैं जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कर लिया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे हैव सम डिग्री ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। अगर आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर है, अगर आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं, तो पिकिंग अप एनी नोट्स विल नेवर हार्म यू। अगर आपने सारे कोर्स कर लिया है, आपने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ली है, अब हाँ ये एक चीज है, डू नॉट डू बोथ। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद भी लक्ष्मीकांत 3 बार पढ़ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली एन एकेडमिक टाइम पास। ठीक है, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट कि ठीक है बहुत पढ़ाई हो रही है, बट दैट इज नॉट बी एन एक्टिव लर्निंग दैट विल वेरी लेस ट्रांसपायर इनटू एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, दोनों का पर्पस सेम है। जैसे जो क्लास में टीचर बोल रहे हैं और उसके बाद शॉर्ट में नोट्स लिखवा रहे हैं, दैट इज वेरी मच सेम एज लक्ष्मीकांत में एक 2 पेज में एक पूरा टॉपिक समझाया गया है, उसके बाद आप कहीं से और उसके खुद से नोट्स बना रहे हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, तो आप जब पहले फाउंडेशन कोर्स जिनका हो चुका है या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो चुकी है, अगर उनको लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ी दिक्कत है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दो अपने शॉर्ट नोट्स को, या जो आपके पास नोट्स हैं। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर दो। फिर मान लीजिए आपने पॉलिटी के अपने नोट्स रिवाइज किए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये या तो आप किसी स्टैंडर्ड, जैसे मैं 1 पेजर दिखाया था, वो कहीं से पिक कर लीजिए, या फिर एआई से आप जनरेट करवा लीजिए एक स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, या फिर किसी टॉपर्स के मिल जाए। मतलब ये इंश्योर करना है कि सारे थीम्स हैं उस नोट्स में। ठीक है, अगर वो नोट्स इनसफिशिएंट है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट यू कैन वेरी इजीली पिक अप सम 1 पेजर नोट्स। वाजी राम का मुझे तो ठीक लगा, शून्य आईएएस के ठीक होते हैं। और वो नोट्स बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए, लेंदी हो गए तो फिर तो पर्पज ही डिफीट हो गया ना, फिर तो उससे अच्छा लक्ष्मीकांत ही पढ़ लेते हैं एक बार और। तो मान लीजिए आपने 2-4 दिन में मान लीजिए अपने एक सब्जेक्ट के पॉलिटी के नोट्स रिवाइज किए, क्लास नोट्स, और उसके बाद 2-4 दिन में 2 बार 1 पेजर्स पढ़ गए। ठीक है, पहला सब्जेक्ट ऐसे चला, मान लीजिए 6 दिन लग गए। ठीक है, पहले सब्जेक्ट में ही दिक्कत है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पर डे 5 to 6 क्वेश्चन या मान लीजिए 4 to 7 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए। ठीक है, जिनके पास ज्यादा टाइम है
वो 7 क्वेश्चन पर डे लगाइए, जिनके पास कम टाइम है वो 4 लगाइए। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे या सवा घंटे से 2 घंटे मान लीजिए, 2 आवर्स डे इस काम को दिया। सुबह उठ के 7 आंसर लिखा। ठीक है, आंसर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने पहले ही बताया कि आपको अभी टाइम पर कोई फोकस देना ही नहीं है। टाइम को कोई फोकस नहीं देना है। आपको फोकस किस पे देना है कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, शुरू का एक आइट्रेशन। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, ये बात भी नोट कीजिएगा। ठीक है, जब आप 1:15 के रेशियो में या 1:20 मान लीजिए, ठीक है, इस रेशियो में प्रैक्टिस कर लेते हैं, यू विल नेवर फाइंड अ न्यू थीम इन योर लाइफ। से फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी के 6 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी के मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं, इसका 15 कितना हुआ, 19 to 120 को सोसाइटी के जब आप क्वेश्चन लिख लेंगे, पॉलिटी के जब आप क्या कहते हैं 150 to 200 आंसर लिख लेंगे, यू विल नेवर फाइंड अ न्यू थीम इन योर आंसर पेपर। ठीक है, तो जीएस 1 to 3 मिला के कितने क्वेश्चन आए, 60। तो आप जब 900 to 1200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल 1000 क्वेश्चन, यू विल नॉट फाइंड अ वेरी न्यू, मीन्स वेरी लेस लाइकली कि कोई नया थीम आपको मिलेगा। कभी कभी आ गया कि वाटर ट्विस्टर्स, वाटर फ्योर्ड्स, तो अलग चीज है। ठीक है, बट अगर आप इस स्केल पे प्रिपरेशन करके जाएंगे, अच्छा हाँ, 1:15 1:20 न्यू थीम्स की बात है। ठीक है, मान लीजिए आपने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो उसमें आपको 700 ही नए थीम मिले। ठीक है, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, 1000 क्वेश्चन या 1500 क्वेश्चन आप, जो लोग इस स्टेट पे हैं, कौन से स्टेट पे बेसिक्स कर चुके हैं, 27 में पहला अटेम्प्ट देना है, तो 1500 क्वेश्चन का आप फरवरी तक टारगेट रख सकते हैं, एंड तक। इसके लिए आप ब्रेक डाउन कर लीजिए कितना टाइम है, कुछ ऑप्शनल के लिए भी टाइम बचा के रखना पड़ेगा आपको। अभी मान लो एटलीस्ट जितना अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 सेशंस में, ठीक है, उस समय तक आप एक सब्जेक्ट को बेसिक रिवाइज प्लस 1 पेजर को 1 या 2 बार रिवाइज करके आप जब मान लो हमारा नेक्स्ट सेशन हो जाता है संडे को, उसके बाद आप मंडे से आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। और मैं ये सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है मैं कोई सिर्फ आता है। आप टॉपर आंसर शीट से देख लीजिए, कहीं और सेशन से वहां से देख लीजिए, ये सबका सिंथेसिस बना लीजिए कि सब लोग क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से टाइम को मद्देनजर न रखते हुए राइट अ परफेक्ट, स्टार्ट राइटिंग परफेक्ट आंसर्स। अगर आपको 10 मार्कर में 20 मिनट्स भी लग रहे हैं, नॉट अ बिग डील। 15 मार्कर में आपको 30 मिनट्स भी लग रहे हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग, गेटिंग अ फील ऑफ व्हाट इज अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तो आपका पेपर नहीं है ना। ठीक है, पहले आइट्रेशन में मान लीजिए आपने टारगेट किया कि आप पिछले 6 साल की पीवाईक्यू करेंगे या 5 साल की पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 15 अप्रैल से 31 जुलाई पहला आइट्रेशन आपने चलाया 4 जीएस पेपर का। ठीक है, इसमें माना कि 5 या 6 साल की पीवाईक्यू, 4 5 6 जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, उतना जितना पास जितना टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से इतना आपने सोचा प्रैक्टिस। इस वाले में आपको अगर पेपर लिखते समय कंटेंट की दिक्कत आ रही है तो ठीक है, या तो क्वेश्चन लिखने के बाद कंटेंट देख लीजिए, या उस समय भी अगर थोड़ा बहुत हिंट लेना है तो ले लीजिए। बट क्योंकि आप आंसर लिखते समय कभी कंटेंट नहीं सीख सकते, ठीक है, उस समय तो आप बेटर क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट। ठीक है, दिस डज नॉट मीन कि आप ये पढ़ने वाला स्लॉट ही गायब कर दें। पढ़ने का भी टाइम है ना, कि 2 बार एक बार बेसिक नोट्स को रिवाइज किया, वन एक बार बेसिक नोट्स को रिवाइज किया, 2 बार 1 पेजर पढ़ा, उसके बाद उस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग स्टार्ट की, दिन में 1 से 1.5 घंटे, 1 से 2 घंटे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतने में आपको बहुत कंटेंट आ जाएगा। इसके बाद अगर कंटेंट की दिक्कत पड़ रही है तो फर्स्ट आइट्रेशन में, ओनली इन फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, मैं सब कुछ क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मिस इंटरप्रेट मत करना। फॉर 30 से फॉर एग्जाम्पल, ये सारे नंबर इंडिकेटिव हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं एक बेसिक लेआउट बताना चाह रहा हूँ। इस टाइम में आप थोड़ा बहुत कंटेंट रेफर करना हो तो कर लीजिए, बिकॉज while आंसर राइटिंग यू कैन नॉट improve the content, you can only improve your structuring and presentation, while reading you enhance your content level। ठीक है, अब क्या हुआ कि 6 दिन आपने किया, पढ़ाई की, उसके बाद 10 दिन 2 2 घंटा आपने आंसर राइटिंग की, 1.5 घंटा मान लेते हैं,
10 दिन 1.5 घंटा आपने आंसर राइटिंग किया। अगले सब्जेक्ट के लिए फिर 5 दिन लगेंगे, क्योंकि ये तो पॉलिटी माना था, पॉलिटी बड़ा सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर बचे खुचे टाइम में ना, दिन में 2 घंटा 1.5 घंटा आपने आंसर राइटिंग किया, बचे खुचे टाइम में अगले सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने लग जाइए ना। से फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के बाद आपको लगा कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। अगर रीडिंग वाले स्लॉट में एक स्लॉट रीडिंग का हो रहा है, एक स्लॉट राइटिंग का हो रहा है, ठीक है, रीडिंग, तो रीडिंग वाले स्लॉट में अगर टाइम, ये सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस पहले ही खत्म हो जाता है, इससे पहले कि आपके पॉलिटी के 6-7 साल के पीवाईक्यू पूरे हुए हैं, 5-6-7 के, तो आप कोई और सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए या इस पॉलिटी को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और एक और काम करना है, एक काम ये करना है कि जब आपने मान लीजिए 5 क्वेश्चन लिखे पॉलिटी के, ठीक है, 5 क्वेश्चन में आपको 8 डिफरेंट थीम्स मिले, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, हाउ डज या critically analyze the role of judicial activism towards enforcement of constitutional morality, ठीक है। तो आपको 2 थीम मिले, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस पे आप 1 पेजर नोट्स नहीं बनाने हैं, 1 पेजर नोट्स आपके पास हैं। इसके बाद आप इन पे ना कीवर्ड बैंक बनाना शुरू कीजिए। कीवर्ड बैंक कैसा होता है, मैं इलस्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक लेवल और छोटे नोट्स है। इनका फायदा आपको मिलेगा जब पेपर से 1-1.5 महीने बचे होंगे। उतने में आप मान लीजिए आपने 1000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किए, 1000 क्वेश्चन में आपको 700-800 कीवर्ड्स मिल गए या ऐसे थीम्स मिल गए, ठीक है। ये मैं दे दूंगा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा या फिर इन प्रेप वाले पे। इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी फोकस इस पर करना है कि वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको मान लीजिए एक थीम मिला, जुडिशियल एक्टिविज्म मिला, तो व्हाट आर द टॉकिंग पॉइंट्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास क्लास नोट्स हैं या लक्ष्मीकांत वगैरह जो पढ़ी है उसके शॉर्ट नोट्स है या उसमें अंडरलाइन है, ठीक है। थीमेटिक रिवीजन के लिए, मल्टीपल रिवीजन के लिए आपके पास 1 पेजर नोट्स है, जो आपने या तो एआई से जनरेट किया या किसी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से लिया है, ठीक है। अब उसके बाद जब लास्ट में वेरी फास्ट रिवीजन करना है कि लास्ट के 1 महीने में मैं पूरा जीएस 5 से 10 बार रिवाइज कर जाऊं मेंस से पहले, उस समय आपके पास ऐसे 600-700 पेज मिल गए, ठीक है। इसको आपको बस रिवाइज करते रहना है, क्योंकि उस समय तक आप स्मैशर को 8-10 बार रिवाइज कर चुके हैं। स्मैशर बोले तो 1 पेजर नोट्स वाले काम वाले, मैं स्मैशर पढ़ता था इसलिए बार बार वो टर्म आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको बस कीवर्ड कीवर्ड देख के जाना है। उस समय तक आपके दिमाग में पूरे, आप एक ह्यूमन मशीन बन चुके होंगे आंसर राइटिंग की, ठीक है। कि कोई भी मान लो ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है कि कोई भी स्टडी ऑफ पॉलिसी आ जाए, तो उसके क्या स्टेप्स है, ठीक है। जैसे किसी भी पॉलिसी का एनालिसिस आ जाए तो उसमें आप ये टेम्पलेट लगा सकते हैं वेरी इजली ना। या फिर सोशल या कल्चरल लाइफ, ये तो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। इतने सारे पॉइंट्स, जैसे पिछले साल चंदेला आया, हाउ डज चंदेला आर्ट फॉर्म रिवील द ब्रेथ एंड विगर ऑफ लाइफ, तो उसमें आप इनमें से काफी पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, 15-20 पॉइंट्स, जबकि दैट वाज द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ये हो गया, ये सैंपल भेज बनाया है मैंने, सैंपल आपको आज आज दिखाने के लिए बनाया है, ठीक है, मतलब पुराने नोट्स से स्कैन किया है। बाकी ये वाला काम करना चाहिए, इस काम को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसी थीम पे अभी आंसर राइटिंग की है 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले। अब उसी थीम पे आपको जो अपने आंसर में मिले, प्लस आपको मान लीजिए एआई से मिला या फिर 1 पेजर से मिला या स्टैंडर्ड बुक से, एक थीम बनाने में आपको आधा घंटा लगेगा। मतलब सॉरी, 8 थीम मिले, 8 थीम बनाने में आपको 8 8 पचे 40 50 मिनट, 45 मिनट, तो आपका 1.5-2 घंटे का काम है पर डे का। 1.5 घंटे का आंसर राइटिंग, 45-50 मिनट का थीम पे ये करना, ठीक है। तो इससे आपको बाद की रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगी। इनफैक्ट जब आप 4-5 बार 1 पेजर पढ़ चुके हैं उसके बाद सिर्फ इसको भी रिवाइज कर सकते हैं, या एक बार इसको एक बार उसको, तो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक एस्पेक्ट जो हेलो इफेक्ट का था, जो कि मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो ऐसे सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट का एक एस्पेक्ट क्या होता है, सब्सटेंसिएशन। सब्सटेंसिएशन कैसे हैंडल करना है वो अपन देखेंगे मैं थोड़ी देर में। एलिमेंट्स ऑफ एन आंसर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये तो एक ही टाइप ऑफ पीपल के लिए हुआ, जो लोग, हाँ सॉरी काफी लंबा चल गया, 2027 में भी दे रहे हैं और अभी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वो लोग कोर्स को ना, मान लीजिए फाउंडेशन एस्पेक्ट जो है उसको थोड़ा फास्ट करें। आई जेन्युइनली फील कि फाउंडेशन कोर्स वगैरह जो होते हैं दे आर बिट इलोंगेटेड,
आप अगर अपने पेज पे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट हो गए हैं उनकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं सिमिलर मेथोडोलॉजी पे, ठीक है। अगर जिनका कोर्स हो गया है वो मान लो 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप भी 3 क्वेश्चन से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। तो वो लोग स्लोअर पेज पे जा सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सिलेबस को जल्दी खत्म करके इस एस्पेक्ट पे आ सकते हैं। मान लीजिए ये लोग 15 अप्रैल से लिख रहे हैं, तो आप लोग हो सकता है 15 अगस्त से लिखें। लेकिन एक बार ये एस्पेक्ट को फील लेना, मान लीजिए ये लोग 1500 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, तो आप लोग 600 ही लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक और पता नहीं मुझे ट्रेंड नजर आता है कि आजकल लोग 1 जनवरी से प्रीलिम्स पे लग जा रहे हैं। दैट्स ये सेल्फ सेबोटाजिंग चीज है। इन प्रीलिम्स यू जस्ट हैव टू नॉट गेट एलिमिनेटेड, बट यू हैव टू गेट सेलेक्टेड इन मेंस, दैट टू अमंग सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। यू शुड फोकस ऑन मेंस एटलीस्ट टिल 28 सॉरी, ठीक है। 1 मार्च से 31 मार्च प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रीलिम्स पे, और प्रीलिम्स में मेन बात ये है कि मेहनत का स्ट्रेट कोरिलेशन इफेक्ट नहीं है, ठीक है। वो अलग बात बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आई वुड, मुझे ये चीज पर्सनली समझ नहीं आई, इसलिए मैं इसको इम्फेसाइज करना चाहता हूँ अभी, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। वी हैव मोस्टली डिस्कस द व्हाट एस्पेक्ट, व्हाट इज टू बी डन। और 2026 वालों के लिए इस काम को क्या कहते हैं, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किया, 1 जून से 15 जुलाई तक किया जा सकता है सेम काम। वो लोग 7 या 8 क्वेश्चन पर डे से कर सकते हैं, या 10 क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग ये क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन कंटेंट वाला पार्ट भी डायरेक्ट एआई से कर सकते हैं, उसको थोड़ा फास्टर कर सकते हैं। बट एक बार परफेक्ट आंसर लिखने का फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट इज वेरी रिस्की, एंड मोस्ट लाइकली मोस्ट पीपल फॉल इन द रेंज ऑफ 30-40% मार्क्स। उस चीज से बचने के लिए एक बार आपको हाथ जरूर जमाना पड़ेगा कि व्हाट इज अ परफेक्ट आंसर एट द स्लोएस्ट पॉसिबल स्पीड। आप उसको लिख के देखिए, फिर उसको स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। दिस वाज द गोल। एंड 2027 के लिए ज्यादा टाइम है, बट 26 में भी जिनका है, वो लोग उसको कुछ दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 35 दिन के लिए एक बार फील ले लें, ठीक है। उसके बाद उस चीज को फास्ट करने का ट्राई करें, ठीक है। अगर डायरेक्ट फास्ट लिखने लगेंगे तो आप वही फिर जनरिक आंसर्स या बेसिक आंसर जिसको एग्जामिनर ओवरलुक कर जा रहे हैं, वैसे आंसर लिखने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। एलिमेंट्स ऑफ एन आंसर, ऑफ कोर्स सबको पता है कि आईबीसी, और अपन ने आज नया कर दिया एक्स्ट्रा या हेलो इफेक्ट, ठीक है। इसको भी एक आप वो मान लीजिए। आईबीसी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब क्या क्या चीजें हैं ये देखते हैं अपन। हेलो इफेक्ट में क्या क्या डायग्राम मतलब क्या है कि एक चीज हो सकता है कि हाँ, क्या आप इंट्रोडक्शन के बाद कोई एक वैल्यू एडिशन एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कंपल्सरीली? ट्राई इट, एटलीस्ट व्हेन यू आर डूइंग एट द स्लोएस्ट पॉसिबल पेस, ठीक है। जब आप स्लो लिख रहे हैं और आप परफेक्ट आंसर लिखने चाह रहे हैं, तो इनकॉर्पोरेट सम वैल्यू एडिशन एस्पेक्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन, दैट मे बी कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन डायग्राम। मान लो क्वेश्चन आया, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ये सिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। शुरू में हो सकता है कुछ भी डाल दें, बट धीरे धीरे आपको रेलेवेंस भी डेवलप हो जाएगी कि जो आपने डाला है वो रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी एलिविएट द इश्यूज ऑफ इंडियन फार्मर्स। ये तो पूछा नहीं है कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, क्यों ना एक छोटा सा बता दें कि डायमेंशंस ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, हाई सरफेस एरिया, ठीक है, या जो भी है ना, 4-5 पॉइंट ऐसे बता दिया, इट विल ऐड सम वैल्यू, ठीक है। या ये भी नहीं पूछा व्हाट आर द इश्यूज ऑफ इंडियन फार्मर्स, हो सकता है ये बता दें और टेबल फॉर्मेट में आंसर कर दें, इश्यूज ऑफ इंडियन फार्मर्स सॉल्व्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, ये ऐसे भी किया जा सकता है। इट विल ऐड सम मोर हेलो इफेक्ट। ये एक पार्ट हो गया, क्या डिस्कस कर रहे थे अपन। हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद एक कंपलसरी हेलो इफेक्ट का कोशिश करनी है अभी, ना बने कोई बात नहीं, ठीक है। इनफैक्ट सबसे सिंपल कोई भी दो टर्म्स हो उनके बीच में फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हंगर, पॉवर्टी। हंगर से पॉवर्टी कैसे होती है, कैसे होती है, लो कॉग्निशन, ठीक है, डिजीज बर्डन, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ हेल्थ एक्सपेंडिचर। पॉवर्टी से हंगर कैसे होगी, लो अफोर्डेबिलिटी, या वो क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर, ठीक है। ऐसे आप एक कोई भी डायग्राम बन सकता है,
किसी भी दो टर्म के बीच में आपको चार पांच वर्ड ढूंढने हैं, बस एक फ्लो चार्ट बन गया। तो बाकी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन अपन देख रहे हैं। हेलो इफेक्ट पे अपन पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा अभी emphasize नहीं कर रहा हूँ। पहले अपन कैसे डेवलप करना है वो आगे देखेंगे, क्या होता है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अब आईबीसी को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अच्छा ये टाइम एक्सीड हो रहा है, 1 घंटा हो गया है, बट ठीक है। 5-10 मिनट और देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की नीड क्यों है? इट इज टू कन्वे टू द एग्जामिनर, कन्वे टू द एग्जामिनर दैट यू नो द आंसर। ठीक है, दैट यू नो द आंसर विदाउट हैविंग स्टार्टेड इवन स्टार्टिंग टू राइट इट। जबकि आपने मतलब कोई भी कोई चीज नहीं लिखी है, उससे पहले भी आपको एग्जामिनर को कन्वे करना है कि आपको आंसर पता है। ठीक है, जैसे मान लो गवर्नर वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हाउ डज द ऑफिस ऑफ गवर्नर इंश्योर कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडियन क्वाजी फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप जरूरी तो नहीं है कि मतलब आप गवर्नर के बारे में डिफाइन करने लगे या कुछ भी करें आप, लेकिन अगर ये बता दें कि ये क्वेश्चन आया क्यों है, कि इन द केस ऑफ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु फॉलोइंग जजमेंट हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स यू आर वेल versed with what is asked in the question। ठीक है, so you can introduce with giving some context। ठीक है, अब क्या हुआ, हाँ व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है। व्हाट, अब देखो चैलेंज क्या होता है ना यहाँ पे आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्लो लिखना है, स्लो लिखना है। और अपना हम यूजुअली वो चीज लिख देते हैं जो हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है। ठीक है, फर्स्ट थॉट आते ही लिखेंगे तो आप अपने आप को डिमार्केट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थॉट यूजुअली डेफिनेशन आएगा, क्योंकि आपने नोट ज्यादा बार पढ़ा है। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ डीग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इस साल शायद आया था ना, इंडियन इकोनॉमी ऐसा कुछ आया था। जरूरी नहीं ना ग्लोबलाइजेशन को या डीग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करें ना, आप सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन द वेक ऑफ ट्रम्प ट्रम्प्स मागा या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, द deglobalization has been led by the West and its impacts on several sectors of Indian economy like semiconductor etc. are felt। ठीक है, तो ये contextual हो गया। It is something different from what most of the students are writing। ठीक है, या कोई फैक्ट भी आ सकता है, मैं बहुत टाइम से अभी रिवीजन पे नहीं हूँ तो हो सकता है वो एक लैग हो, लेकिन यू हैव टू मेक इट कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। डेफिनेशन बेस्ड को प्रिफर नहीं करना है। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड मोस्ट ऑफ द पीपल लिख रहे हैं एंड इट गेट्स बोरिंग फॉर द एग्जामिनर। एंड मीन्स मान लीजिए ना, आपसे पहले वाले ने डेफिनेशन लिखा था, उससे पहले वाले ने डेफिनेशन लिखा था, आपको एग्जामिनर वो पढ़ेगा ही नहीं। बट इफ यू आर एडिंग समथिंग फ्रेशनेस, इफ यू आर एडिंग सम value to the answer to every word that you are writing, you will get much better marks। So up to the extent of possibility, try to add context based introduction। context could be historical context की कोई चीज क्यों हुई, या हिस्ट्री में ऐसा आ सकता है। हिस्ट्री में context based क्या होता है कि उस इवेंट से पहले क्या इवेंट हुआ था, उस इवेंट के बाद क्या इवेंट होगा। उस इवेंट से पहले क्या इवेंट हुआ था वो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, उस इवेंट का इम्प्लीकेशन क्या हुआ था वो कंक्लूजन में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड प्रीफर कब करना है? डेफिनेशन बेस्ड कैन बी प्रीफर्ड, अभी अपन अगले कुछ टाइम बाद मतलब अगले सेशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टिव देखेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड को प्रीफर तब किया जा सकता है जब क्वेश्चन में एक सिंगल थीम हो। ठीक है, आप नोट कीजिएगा, सिंगल थीमेटिक क्वेश्चन हो। ठीक है, व्हाट आर मरीन हीट वेव्स, या हाउ डू मरीन हीट वेव्स अफेक्ट द, हाउ आर मरीन हीट वेव्स फॉर्म, हाउ डू दे अफेक्ट द कोस्टल इकोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें एक ही थीम है मरीन हीट वेव्स, इसमें आप मरीन हीट वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या जब दूसरा केस है कि जब वो टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन सी ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ कैन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हेल्प इन सॉल्विंग द ट्रिलेमा ऑफ इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन या क्या कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म जैसा कॉमन थीम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबिलिटी try to provide context based introduction। context could be historical या current news could be there, fact data example reports। ठीक है, these are adding context to the answer। ठीक है, सेकंड थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है वो ये है कि you should cover all the theme। ठीक है, that is also a flaw of the definition based introduction।
अगर डेफिनेशन में, अगर मान लीजिए दो थीम है क्वेश्चन में, ठीक है, तो दोनों को या तो डिफाइन करना पड़ जाएगा, इन दैट केस इंट्रोडक्शन विल बिकम वेरी लेंथी, but you have but in context based cases you could provide a fact, provide a news that links both the themes, and in a single line you can introduce, ठीक है। इंट्रोडक्शन को बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, डू नॉट ओवरडू द पार्ट, ओवरडू मतलब आपको एग्जामिनर को बस एक कन्वे कन्वे करना है कि आपको आता है, अब उसको जितना खींचेंगे एक तो उतना ही आपका टाइम जाएगा, उतना ही स्पेस जाएगा, कोर डिमांड को एड्रेस करने के लिए, वैल्यू एडिशन एलिमेंट्स को लाने के लिए स्पेस कम हो जाएगा, एंड आगे आप क्या कहते हैं, बोर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है कि मतलब 15 वर्ड के आसपास, 10-20 वर्ड के आसपास 10 मार्कर में मैक्सिमम, मतलब 10 से 20 मान लीजिए, और वहां पर 15 से 30 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कोशिश करना है 15 और 20, 15 वर्ड में 10 मार्कर का, फिर 20 वर्ड में 15 मार्कर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। रिफ्रेजिंग नहीं करनी है, रिफ्रेजिंग इज पीपल, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पे क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में लिख दिया इंट्रोडक्शन, ना, कि क्वेश्चन है मान लो, व्हाट आर द, जैसे वही था मान ले, हाउ कैन एन टेक्नोलॉजी एलिविएट द इश्यूज ऑफ इंडियन फार्मर, ठीक है, इंडियन फार्मर्स फेस लॉट्स ऑफ इश्यूज दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, आप ये इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, या क्वेश्चन को दूसरी तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है। Try to be innovative, try to bring context. If it is not possible, if the theme is single thematic, if the question is single thematic, or it is क्या कहते हैं, uh, the theme or the keyword is difficult in nature, then you can go for definition based, but up to the extent of possibility, prefer context based, and secondly क्या कहते हैं, link all the themes in the introduction, ठीक है। सेकेंडली कंक्लूजन है, बॉडी पे अपन बात करेंगे, बॉडी माइट टेक मोर टाइम, इसलिए हो सकता है उसको कल करें। हाँ, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन जैसे इंट्रोडक्शन का इसेंस हमने देखा था, कि इंट्रोडक्शन का इसेंस है टू कन्वे टू द एग्जामिनर दैट यू नो द आंसर, और कंक्लूजन का है कि गिव क्लोजर टू द आंसर, ठीक है, ब्लैंडनेस ना रहे, आपको क्लोजर देना है आंसर को, क्लोजर देने के लिए बस इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए ना लोग सोचते हैं क्या कंक्लूड करें कैसे करें, एक बात, क्योंकि आप ये सब में बातें जो है ना इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी एक्स्ट्रा टाइम लेकर के लिखने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं इस चीज को, इट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द आंसर, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द आंसर, इस बात को लिख लीजिए, तो इससे आप सेल्फ एवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंक्लूजन से पहले प्रीसीडिंग पार्ट, ठीक है, प्रीसीडिंग पार्ट से मान लीजिए चैलेंजेस, तो वे फॉरवर्ड में आना चाहिए, वे कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, वे फॉरवर्ड, अगर वे फॉरवर्ड यहाँ पर था, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स, कि इस चीज को करने से क्या फायदे होंगे, दीज स्टेप्स विल हेल्प अस अचीव द गोल्स ऑफ एसडीजी 5 इन ब्रैकेट जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, इसलिए एसडीजीज और डीपीएसपीज और गवर्नमेंट टैगलाइंस, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन था, हाउ फार डू यू एग्री टू व्हाट एक्सटेंट, तो आपने पहला एक डायमेंशन लिखा, यस यू एग्री, यस यू डोंट एग्री, तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, टेक अ बैलेंस्ड स्टैंड, ये क्या हो गया, हाउ फार डू यू एग्री टू व्हाट एक्सटेंट, इस टाइप के उसमें, ठीक है। अगर मान लो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब वन वन डायमेंशनल वन थीमेटिक क्वेश्चन आ गया, या फिर टेक्निकल इन नेचर आ गया, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी साइंस एंड टेक में आता है, तो उस केस में आप क्या कहते हैं, या तो कोई प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, इसको यूज करने से वी विल बी मोर बेटर ऑफ, या फिर समराइज कर सकते हैं, ठीक है। समराइज इज अनदर थिंग लाइक डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन को जैसे अवॉइड करना है वैसे ही समराइज को भी अवॉइड करना है, ठीक है। इट इज एक्चुअली द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द आंसर, ये बात याद रखिएगा, चैलेंजेस के बाद में फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद प्रोस्पेक्ट्स, या हाउ फार डू यू एग्री टू व्हाट एक्सटेंट वाले के बाद बैलेंस स्टैंड ले सकते हैं आप, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चंस के बाद आप प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजीज की बात कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में उस इंसान का किसी पर्सनैलिटी पे आया तो उसका पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या इम्प्लीकेशन था, प्रोस्पेक्ट हो गया वो भी एक तरह से, ठीक है। या फिर किसी इवेंट की बात हुई है तो उस इवेंट से पहले क्या हुआ था, दैट कैन बी इंट्रोडक्शन, और उस इवेंट के का इम्प्लीकेशन क्या था, दैट कुड बी कंक्लूजन, ठीक है। कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उसका इंडिया पे इम्प्लीकेशन, वर्ल्ड इवेंट का, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी, ठीक है, ये सब चीजें की जा सकती है, ठीक है। आई थिंक हम यहाँ पे रुक जाते हैं,
यहाँ को ये भी अपने को डिस्कस करना था, बट यहाँ पे अपन रुक जाते हैं अभी, अगला ये डिस्कशन लंबा चलेगा इसके बाद का। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। गिव मी 5 minutes ब्रेक एंड देन आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अविनाश विल बी हैंडलिंग इन द मीन वाइल। ठीक है, आप लोग, आई थिंक अविनाश ऐसा करते हैं कि लेट देम रेज हैंड एंड देन दे कैन आस्क वर्बली क्वेश्चन, क्योंकि नहीं तो चैट में इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल गेट स्किप्ड आउट। ठीक है। यस। अ, नेक्स्ट सेशन कब है? सो थैंक्स Sakil for asking this. So next session will be on Tuesday 7th April at 12 noon sharp, and the Zoom link will be same. I'm just going from library to home. Kindly give 10 minutes. Yeah, Purnima, sure. Take your time. Yeah. Recording मिलेगी क्या आज के क्लास की? It's very hard to say right now. Let's just focus on this session and the next five. And also, I would like ask everyone, do not send me personal messages. Uh, it would be really helpful if you can just post it on the group, that everyone group in the Zoom chat, so that the rest of also the people can see it, and also Rahul sir also can see it. So next session will be on Tuesday 7th April at 12 noon sharp week. And also we will be sending emails, and also like if you able to join, and I will really ask to join Lean Prep Telegram group. You will get their constant updates on the rest of the sessions. So that will be very full. Yes, we will work on recording, but I cannot comment on that. Yeah. Sir, help me with current affairs. Yeah, sure. Please, Mr. Banana, and you can post your doubts on any doubts regarding Lean Prep or anything that you have in mind on Lean Prep discussion. We will surely सेशन 12 पे ऑफिस रहता है। सेव कुछ देखते हैं, डोंट वरी सिर्फ, एवरीवन इज स्पेशल फॉर अस। तो देखते हैं सिर्फ। सर क्या ये एआई यूज़ कर सकते हैं इस पर? में आई यूज़ नोटबुक एलएम जेमिनी एंड चैट जीपीटी। रानी समझ गया। श्योर रानी, आप यूज़ कर तो सकते हो, बट द थिंग इज दैट एलएलएम्स बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट करते हैं, तो दे मे गिव यू वेरी रॉन्ग आंसर्स। इसलिए ही हम लोगों ने लीन पे बनाया कि टू गेट यू एन स्ट्रक्चर्ड आंसर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन ऑफ इट। तो यस, लेकिन ऑफ कोर्स इफ यू थिंक इट इज़ गुड, यू कैन यूज नोटबुक एलएम एंड जेमिनी एंड चैट जीपीटी। Upload this video on YouTube. I was out of station. Vivek, of course, again, no comments. We will work on that. Can you please change the timings of Tuesday session, please? ठीक है, मैं एक पोल बना के भेज दूंगा ऑन टेलीग्राम लीन प्रेप चैनल। लेट्स सी कि लोगों को क्या बेटर प्रेफर लगता है ऑन टाइमिंग्स, एंड वी विल सी। 12 पे कॉलेज वगैरह होता है, ठीक है सकती, वी विल ऑफ कोर्स based on the polls we will decide सकती। Pranav, Kaushik, I have doubts. Please, Pranav, use the lean prep discussion group for any doubts you have regarding this session or the lean prep. We will really love to help you. Uh, Answers, do we brainstorm all the points before starting answer thing? Well, Abhinav, uh, Rahul would be better person to answer this, as he will be joining in a minute. How did you prepare for optional? Sorry, I see. Varun, uh, Rahul will take these questions. If not, I will make sure that this question gets to him and he answers you on the link trap. Yeah. Okay. Hi, Rahul. तो ऐसे ही मॉडरेट कर लेते हैं कि लेट देम रेज हैंड, यू, तुम एक को उसको बोलना कैमरा ऑन करने को, दे कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन। Sure. वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस, अगर कुछ रह भी जाते हैं तो आप डिस्कशन ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर एडेड हूँ फॉर नाउ, इन सब वाले पे। Varun ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट? सॉरी। नहीं ठीक है, उनको उनका कैमरा ऑन करने बोल दो, एक पर्सन का कैमरा ऑन करके या अनम्यूट करके हम्म। क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, हम्म। वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम अप टू द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है ज़्यादा, एक एक को नॉमिनेट करते रहे यार। Hello. हाँ, Hello. हाय हाय वरुण। Yeah.
हाय भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई। लेट अस बी यस प्रॉम्प्ट ना, भैया। क्योंकि बहुत लोग हैं या मुझे या लगता है। हाँ। एग्जैक्टली। सर बेसिकली सर मैं मैकेनिकल ग्रेजुएट हूँ, और मैंने इस बार गेट दिया था, और मैं सर आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, स्पेशली आंसर राइटिंग के अंदर। मैंने भी ठीक। मतलब मैं काफी ठीक है। कंफ्यूज हूँ इसके लिए भी। ठीक है। ठीक है। देखो, इसमें ना मैंने तो क्या किया था कि जैसे उस समय ईएस के मेंस की कोर्स लिया था मेडी से, लेकिन उसको ऐसे रेप्लिकेट किया जा सकता है कि या तो पीवाईक्यू से, या मेडी या क्या है, नेक्स्ट ईयर की बुकलेट आती है कि उसमें सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कितने से, फॉर एग्जांपल एक कोई बड़ा सब्जेक्ट भी है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग मान लो। ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग पे आज तक 45-50 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उससे ज्यादा आए ही नहीं है। ठीक है, तो उनको एक आइडेंटिफाई करके स्टार मार्क कर लो, या फिर एक नोट बना लो। ठीक है, और इनको बार बार करते जाओ। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस का बहुत रोल है। ठीक है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, जो भी टेक्निकल ऑप्शनल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सबका सेम नेचर है। दे आर वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग आंसर्स पेपर्स। या तो लोग 220 से कम लाते हैं या 270 से ज्यादा लाते हैं, बीच वाली रेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो क्योंकि मार्किंग ऐसी होती है कि या तो आपको 14, 15, 16 मिल रहे हैं, या फिर 2, 3, 4, 5 मिल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर लाने की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करके उस स्टेज पे पहुंच गए तो आप कभी नीचे वाली जोन में नहीं आएंगे। ठीक है, शुरू का कॉस्ट बहुत ज्यादा है कि आप सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें, उनको 4-5 बार लगाएं, ताकि आपको क्या कहते हैं, क्लैरिटी मिल जाए कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही दूंगा। ठीक है, कि 3 टाइप के क्वेश्चन है गवर्नर पे, पोर्टर गवर्नर, प्रोयर गवर्नर, हार्टमिल गवर्नर, तीनों में से एक आना ही आना है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली आता है यूजुअली। पिछले साल, अगले साल पोर्टर गवर्नर के आने का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि 23 में आया था, 24 में हार्टनल आया, 25 में रोयल आया। ठीक है, तो अगले साल उसका चांस ज्यादा है। से फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में एक वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है फैनो फ्लो पे। ठीक है, तो फैनो फ्लो पे या फिर रेले फ्लो पे, एक दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप क्यों ना सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, और उसको वो एक बार एक जगह पर या तो आइडेंटिफाई करके बुक में स्टार मार्क कर दो, और उनको बार बार करते रहो, और उसके बाद टेस्ट पे चले जाओ। ठीक है। हम्म। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। या वरुण, और कुछ है इस पे? टेल अस अबाउट योर मेंस स्ट्रेटजी, अपन वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव डन 60% फॉर पेपर वन मैथमेटिक्स। अपन वो, मतलब मेंस स्ट्रेटजी में अपनी ही और बेटर, उससे रिफाइंड वर्जन मैंने काफी लोगों से पेपर के बाद भी सीखा कि इनफैक्ट जिन लोगों से बात किया उनकी स्ट्रेटजी डिस्कस की, कि अपन मतलब मैं अपना, अपने से बेटर स्ट्रेटजी ही बता पा रहा हूँ। अविनाश, वरुण को अनम्यूट कर दो यार। हाँ, अनम्यूट है। हम्म। ठीक है, करंट अफेयर्स विपिन सर का कोर्स हेल्प करता है, आई थिंक इट इज, मैंने नहीं किया था, लेकिन उस मेरे पास एक चीज को जब भी मैं आंसर दूं तो ये याद रखना कि मैं, टाइम कम था इसलिए मैंने नहीं किया था, बट विपिन सर का कोर्स अच्छा है। यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे सर गेट में 74 रैंक है, लेकिन मेरे को ना ऑप्शनल के रिगार्डिंग भी है ना, उसको कैसे लिखना है वो मुझे आता नहीं, प्रेजेंटेशन करना। नहीं क्वेश्चन मेरे से हो नहीं, जाते हैं सॉल्व, लेकिन हम्म। ठीक है, मैं अपनी कुछ कॉपीज डाल दूंगा, लेकिन ये है कि गेट और सीएससी के में यही अंतर है, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, ईएससी के मेंस का लेवल ज्यादा है सीएससी के मेंस से। बस ये है कि गेट का आंसर 2 स्टेप में आ जाता है, यहाँ 5 स्टेप में आएगा। ठीक है, तो हर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखते जाओ। अगर एग्जाम्पन्स लिख सकते हो तो एग्जाम्पन्स डायग्राम बना सकते हो तो 16 मिलेंगे, अगर नहीं लिखे हो तो 14 मिलेंगे, लेकिन अगर सही आंसर नहीं आया तो कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो मेन फोकस रखना है कि शुरू में शुरू के कुछ क्वेश्चन तो बना दिए, उसके बाद अगर टाइम कम पड़ रहा है तो एजम्पशन और वो छोड़ करके डायरेक्ट आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, हर हर स्टेप पे जो वैल्यू आई है उसको हाईलाइट करते जाइए। ठीक है, मैं कुछ कॉपीज भेज दूंगा नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज की, वो मैं यस आपको सर। हेल्प करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन और था मेरा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिन पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूं, एज कम्पेयर टू जो कि गेट में मैंने पढ़ रखे हैं, लेकिन उन टॉपिक थोड़ा देखो, मेरे को ज्यादा मैं डीपली बता रहा जानना हूँ, था। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना, गेट के अलावा 2 नए टॉपिक आते हैं। एक तो आता है कंट्रोल चार्ट या आईएमओआर में कुछ कुछ नए टॉपिक है, और दूसरा है कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड, इन दोनों से क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन गेट में या ग्रेजुएशन में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में कहीं भी ये दो तीन टॉपिक्स नहीं है। तो इनसे कुछ इजी सेट बन जाते हैं। पेपर वन सेक्शन टू में एक आईएमओआर आता है, वहाँ पर कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं आईएमओआर से। लेकिन अगर वो नहीं बनाया तो आपको क्या कहते हैं, पेपर वन सेक्शन वन से 2 सेट अटेम्प्ट करने पड़ जाएंगे, उसमें
टफ टॉपिक्स आते हैं, क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, या बेसिक, या कौन सा होता है मैकेनिक्स जेई एडवांस वाली, ठीक है, वो आता है। सिमिलरली पेपर 1 सेक्शन 1 में आता है, पेपर 2 सेक्शन 1 में आता है कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, वहां पर कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं उससे, लेकिन since कम लोग उसको पढ़ के जाते हैं तो उनको टफर सेट्स अटेम्प्ट करने पड़ जाते हैं, या लेंदियर सेट्स अटेम्प्ट करने पड़ जाते हैं, जिसमें आरएसी आपको क्या कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट पे सॉल्व करना पड़े, ये सब थोड़े से टफ पड़ते हैं। ठीक है। यस सर। और ठीक है। सर आप अपनी कॉपी मुझे कर दीजिएगा शेयर, राइट। हाँ और हाँ एक मुझे, बार इसके लिए भी सर डिटेल में ले लीजिएगा अपकमिंग सेक्शन में थोड़ा और हाँ ऑप्शन के रिगार्डिंग। मैकेनिकल का अलग से लेना पड़ेगा यार वो ना, हाँ ये आप ले लीजिएगा ना, थोड़ा मेरे को और भी क्वेश्चंस हैं तो बाद में हम ठीक है। डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू ठीक है। बाय द वे। ओके। हेलो। हाय शिवम। हाय सर। सर मैंने हाय। 2 मेंस दे दिए अब तक, और सर जीएस में स्कोर पहले में 380 था, इसमें 350 था, बाकी ऐसे ऑप्शन में ठीक है स्कोर। सर एक फ्लॉ बीच में यही रहा है मुझे, सजल सर ने भी आपके बारे में बताया कि सर नोट्स नहीं बना पाया हूँ मैं अपने जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए, और ये वाला मेंस भी दे रहा हूँ। तो सर यही वाली स्ट्रेटेजी टू पिक अप समथिंग लाइक अ प्रहार और स्मैशर यस एंड, यस, और प्रहार थोड़ा एक मैं, लेंदी है, प्रहार थोड़ा लेंदी है। जी सर, जी हाँ सर। हाँ, ये सर सही तो रहेगा उसके बाद। हाँ बता। हम्म हाँ मतलब सर सब्जेक्ट कवरेज और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, बस वो है कि रिटेंशन वहां यस, पे, और वो एग्जाम टाइप का जो वो इनर्शिया है टू बी एबल टू राइट आंसर्स एंड ब्रेनस्टॉर्म। एंड तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये ख्याल रखना है, क्या हम्म ऐसा चीज है जो 90% ऑफ लोग कर रहे हैं, और वो उससे तुम कैसे बेहतर बन सकते हो। उससे तुम्हारे लिए बहुत हम्म, कठिन सी चीज नहीं है, क्योंकि तुमने जो दो अटेम्प्ट में किया है उससे क्या जी। डिफरेंट कर सकते हैं, कि वो हम्म चीज कोर कोर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड, वो मैंने भी पहले भी बोला। उसके हम्म आगे कुछ विजुअल एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं क्या। ठीक है। हम्म दैट हम्म इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। हम्म। तो ठीक है सर भाई। मतलब हाँ सर, तो मतलब बस हाँ वही एक कि सर आई एम टेकिंग योर वर्ड, क्योंकि बड़ा डिसोरिएंट हो रहा था कि हर कोई बोल रहा था कि अपने नोट्स होने चाहिए, अपने पेज वो नोट्स होने चाहिए, तो नहीं उसका नहीं यार, मैंने टाइम तो ही नहीं कभी नहीं बचा है बनाया। सर अभी। नहीं, ठीक है, अगर जी बनाना है तो जी ये जो है ना 100-200 कीवर्ड वाला बैंक बना लो। जी सर, उससे एकदम जी। पॉइंट लास्ट के 15 दिन में 5 बार रिवाइज करके चले जाओगे, तो हम्म। पॉइंट्स फ्लो करेंगे। और अपन अभी टेम्पलेट्स डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट्स में मोस्ट पीपल को टेम्पलेट्स पता होते हैं, बट कैसे लगाना है उस चीज हम्म। पे भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल वो राइट सर। एस्पेक्ट, उससे हो सकता है थोड़ा ठीक और एडवांटेज मिल जाए। ठीक ठीक है, है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बढ़िया सेशन सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। No, no, please go ahead. हेलो। हेलो सर। सर ये आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, आउटपुट आउटकम, इसने मेरी काफी हेल्प करी थी सर। आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते थे, इसे थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए। देखो, जो भी मैंने बताया ना 4-5 चीजें, सब कुछ एक फ्लो में है। ठीक है, कि मैं उसका सिंथेसिस यही है जो कल मैंने डाला था पीडीसीएस साइकिल वाला, कि मान लो मैं सिर्फ यही नहीं मेजर कर रहा हूँ कि कितने घंटे मैंने पढ़े, ये भी मेजर कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं, वो आ गया कि कितना कितना क्वांटिटी पढ़ा। तीसरी चीज ये आ जा रही है कि जो मैंने किया, मान लो ना मेरे को आइडेंटिफाई किया कि एथिक्स में मेरे सेक्शन 1 में मार्क्स बढ़ाना सबसे इजी लग रहा है। ठीक है, तो अगला चीज मैं उसको फोकस किया, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, कि ठीक है कि मैं हर टॉपिक का एक एक कोट रख लेता हूँ। ठीक है, या फिर एथिक्स के टेम्पलेट्स बना लेता हूँ, क्योंकि एथिक्स में टेम्पलेट लगते ही मेरे नंबर ऑफ पॉइंट 6 से 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये कठिन काम नहीं है। तो एवरी नेक्स्ट इजिएस्ट इम्प्रूवमेंट को क्या कहते हैं, मेजर करते रहना है। एंड उससे आप क्या कहते हैं, इजी गोल स्पष्ट होते जाएंगे, और आपको प्रोग्रेस फील होगी, तो मे बी मोटिवेशन भी ज्यादा रहे, मे बी क्या कहते हैं, चीयरफुलनेस रहने से आपको मन भी ज्यादा करे। ठीक है। और सर इसी में एक क्वेश्चन था सर, जैसे आप रिवीजन करते थे तो एक्टिव रिकॉल करते थे, या मतलब या ऐसे ही मतलब जस्ट पैसिव रीडिंग। और नहीं, पहला पहला राउंड देखो थोड़ा सा टफ होता है। पहला राउंड में तो पैसिवली करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको स्क्रिबल डाउन करते रह सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इतने ज्यादा टेस्ट लिख देता था कि एक्टिव रिकॉल एक्चुअली हो ही रहा है। अगर मैं दिन के 15, मतलब मैं प्री और मेंस के बीच में अगर 50 टेस्ट लिख दे रहा हूँ, जीएस के मान लो जीएस प्लस एसए के 35 टेस्ट लिख दे रहा हूँ, 30-35, और के 15-20, तो एवरीथिंग वो एक्टिव रिकॉल हो ही रहा है ना। जी। और तो सर वो एक लास्ट मेरे को, हाँ क्वेश्चन। हाँ सर बोलो। मैं मतलब 2 मेंस लिख चुका हूँ, 350 मतलब मैं इसमें अटका हुआ हूँ। ठीक है। तो सर मतलब हेलो। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट था सर, मतलब मैं इसे नहीं कर पा रहा था। मतलब बेसिकली मैं इस मतलब आइडेंटिफाई किया था कि इसमें मतलब मैं काफी प्रॉब्लम में होता हूँ। हाँ, इस साल दे रहे होगे ना टाइम। हाँ सर। हाँ, तो मान लो ना कि तुम्हारे 24 को पेपर हुआ, 25-26 रेस्ट कर लिया, तो एक हम्म। जीएस पेपर 3 दिन में रीडिंग कर दो कहीं से भी। ठीक है, जी सर।
शॉर्टेस्ट पॉसिबल, प्रेफरेबली GS2 या GS4, क्योंकि वही छोटा सिलेबस है ना, 1 और 3 थोड़ा बड़ा है। तो उसके बाद उस सब्जेक्ट पे ये अपन जो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे, अब देखो 2 मेंस के बाद कभी कंटेंट चैलेंज है ही नहीं, जी पर्टिकुलरली सर। बिकॉज 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तो इजी आते हैं, जी उसके सर। बाद 2-3 बहुत टफ आते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी में 1-2 क्वेश्चन बचे जिसमें नॉलेज कैन बी डिफरेंशियल, बट दैट इज इमटेरियल। ठीक है, तो उनमें ना कि जो भी लर्निंग होगी कि कैसे आप हेलो इफेक्ट के एलिमेंट्स को आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये चीज मिसिंग होने से मुझे लगता है कि 350 वेरी इजी 420 जंप कर जाएगा। ठीक है, और सर एक और लास्ट क्वेश्चन है इसी में पेपर अटेम्प्टिंग रिगार्डिंग। में भी पेपर अटेम्प्टिंग में भी दिक्कत हो सकता है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से करते हो, सॉरी 11 से करते हो, 11 से जी। करने में हमेशा कम नंबर आते हैं। अच्छा। सर ठीक एक है, मेरा ये एक बात। डाउट इसमें था सर लास्ट। हाँ, बोलो सर बोलो। जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीज कर दीजिए, तो सर मतलब मैं कर नहीं पाया था इस बार, क्योंकि मैं हर पॉइंट पे एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रहा था, तो सर एक ये डाउटफुल रहता था कि हर पॉइंट में लिखें, हर तीसरे पॉइंट में लिखें, हाँ, या लिखना पॉइंट चाहिए, देखो इंक्रीज करें। मतलब, देखो मैं तुम्हें अपना एक शीट दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, मान लो ये देखते हैं, ये मैंने 3 घंटे में लिखा है ना, तो मैं कोई भी देखते हैं, GS3 देख लेते हैं। तो देखो, हर पे एग्जांपल मैंने भी देने की कोशिश की है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ये PW का सिमुलेटर देने गया था, हर पे एग्जांपल मैंने भी दिया है, लेकिन कोई अननेसेसरी वर्ड्स नहीं है ना, जी सर। एग्जांपल या डेटा है, अननेसेसरी वर्ड्स को हटा दोगे ना, एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने ये बोला था ना कि एक्सप्लेनेशन की टेंडेंसी को खत्म कर दो जी ना। सर। तो जैसे कीवर्ड आया, कीवर्ड बेस्ड रीजनिंग आई, ईज ऑफ फाइंडिंग टैक्सेशन, उसका एग्जांपल आ गया। जी सर। जी सर। ठीक है, हाँ, तो ये लीनियस की बात करी थी, इसको एक पॉइंट मतलब इसको कह सकते हो कि हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल कम ज्यादा होना चाहिए, नॉइज कम होना चाहिए। ठीक है, ये मैं जी बाद सर। में शेयर कर दूंगा। ठीक ठीक है, है सर। हाँ, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग से था। एक्चुअली यस एज अ यस। बिगनर ब्रेन स्टॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, प्लस रिवीजन भी। तो उसको कैसे टैकल करूं मैं? आपका आपका अटेम्प्ट कौन सा है? 27। अनम्यूट छोड़ दो ना, ये पता होना इंपॉर्टेंट है ना कि तो आपका मेरा अटेम्प्ट कौन सा है। 20 जी, मेरा हाँ, 2027 विल बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो देखो, और जैसे अपन ने डिस्कस किया कि पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक बार अपने नोट्स अगर पढ़ना है तो दोबारा पढ़ लो, अगर मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा है तो छोड़ दो। उसके बाद कोई शॉर्ट नोट्स टाइप चीज ना, 1 पेजर नोट्स टाइप उठा लो। ठीक है, यही मैंने बोला कि इन द फर्स्ट आइट्रेशन इट माइट बी टफ, शुरू के जब आप 400-500 क्वेश्चन कर रहे हैं उस समय तो थोड़ा सा टफनेस हो सकती है। ठीक है, उस समय आप कंटेंट का हेल्प भी ले लो। ठीक है, लेकिन कल के सेशन में है, मतलब अगले सेशन में है हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, वो भी है अगले सेशन का पार्ट, लेकिन शुरू के 400-500 क्वेश्चन में या 200 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होगी, बट उसके बाद थीम्स रिपीट होने लग जाएंगे। बट डू नॉट डिले इट इनफाइनाइटली कि आपके पास वो 500 क्वेश्चन पे पहुंचने की नौबत ही प्री से पहले ना आ पाए। ठीक है, तो जी स्टार्ट इनिशियल में देखो होगा, दैट इज वाइज द कट ऑफ इज स्टक एट 950 इन मेंस, या मतलब फाइनल रिजल्ट में, या फिर मेंस में 730-40 पे ना, क्योंकि वो लैग, वो आपको इशू रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि इट इज बेटर टू स्टार्ट नाउ, एंड आप अगस्त तक या अक्टूबर तक आप उस स्टेट पे आ जाएंगे कि आप उसको बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या करना है, उसका कुछ एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की कोशिश की। ठीक है, कि व्हाट इज द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, या फिर इस डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी स्लो जाना है बिल्कुल। उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन में देखा कि वी हैव टू ट्राई टू फाइंड कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन, तो क्या इसका इससे रिलेटेड क्या न्यूज थी, क्या कोई फैक्ट है। उसको अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट फील कीजिए कि यहाँ पर एक फैक्ट होना चाहिए था ना? अगर फैक्ट होता तो मजा आ जाता। और अगर उसके बाद कंटेंट से आप देख लीजिए, ये चीज फर्स्ट आइट्रेशन में आप कर सकते हैं कि जब दिन के 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार सारे GS का जब तक नंबर आ जाए तब तक इस प्रोसेस को फॉलो कर सकती हैं आप। ठीक है, सिमिलरली बॉडी के लिए अपन डिस्कस करेंगे, या फिर कंक्लूजन के लिए जैसे आज बताया कि कैसे हो सकता है, इट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, तो इससे पहले चैलेंजेस लिखा तो लेट मी राइट सम सॉल्यूशंस इन कंक्लूजन। ठीक है, तो अभी आप स्लो पेस पे स्टार्ट कीजिए, जो जो यहाँ पे लर्निंग्स मिल रही है तो उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए कि ये इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए था, या फिर क्या मैं यहाँ पर कोई इनोवेटिव वैल्यू एडिशन चीज डाल सकती हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पर मान लो क्वेश्चन आया है फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या एक वर्ल्ड मैप आ सकता है। ठीक है, जी। ठीक है, आपको डाउट क्लियर है? यस सर, यस, थैंक यू सो मच। Thank you, 26 Nizam. 27 का जो विंडो वाला पूछ रहे हैं ना,
ये देखो, इसमें क्या है ना कि अपन ने थोड़ा बहुत तो आज भी डिस्कस किया कि कैसे कर सकते हैं कि एक पर्सन ने अभी भी पूछा था मेंस वालों में कि वही कि आप 25 के बाद पहला काम ये करिए, शुरू के 2-3 दिन में प्री के बाद रिसोर्स फाइनल कर लीजिए कि दिस इज माय रिसोर्स, इसको मैं ट्रस्ट करने वाला हूँ। जैसे मेरे केस में मान लो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने शून्य आईएएस का कंटेंट लिया था, कुछ के लिए बाजीराम का स्पेशल लिया था। ठीक है, तो ये फिक्स है, मैं इसको करूंगा, बार बार करूंगा, 3-4 बार। ठीक है। सर शॉर्ट में डाउट्स लीजिए, अच्छा ठीक है भाई। ठीक है, तो क्या कहते हैं, टूट गया, हाँ। तो कंटेंट फाइनलाइज कर लीजिए, उसके बाद डेली आंसर राइटिंग करिए, 1 आध महीना 1.5 महीना। फिर कोशिश करते हैं कि हर ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट लिख दिया जाए। उस समय तक आपके पास ये जो मैंने भेजा ना, क्या कहते हैं, सैंपल कीवर्ड बैंक बनाने वाला, तब तक आपके पास 200-300 टॉपिक्स का, 400 टॉपिक्स का कीवर्ड बैंक भी बन चुका होगा, मल्टीपल रिविजन्स वेरी फास्ट हो चुके होंगे। उसका सब्सटेंशिएशन कैसे करना है वो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलो आगे करते हैं बाकी। वही मतलब इन जनरल ये सब डिस्कशन 5 सेशन चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आशुतोष कुमार, आशुतोष कुमार, आप क्वेश्चन पूछ लो इफ यू हैव एनी क्वेरी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय। सर, अगर कोई बच्चा फाउंडेशन में है, अभी हम सारथी हम्म, आईएएस के फाउंडेशन कोर्स में है, तो सर हमको ठीक है। कैसे प्रोसीड करना चाहिए आंसर राइटिंग के साथ में? जैसे अभी आप वन पेजर किसी का मतलब आर्टिफिशियल एक तरह से। थोड़े से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हो जाने दो, उसके बिना लिखना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। एटलीस्ट बेसिक सब्जेक्ट ना, वो जो 6 प्री में आते हैं प्लस सोसाइटी, ये सब हो जाए तब करना सर फास्ट एक्चुअली बेटर रहेगा। हाँ। हम सर कॉलेज में थे, अभी भी कॉलेज में ही है, लेकिन अब मास्टर्स में है। तो उस वक्त हम ज्योग्राफी ये सब जो कोर सब्जेक्ट है ना प्रीलिम्स का, वो पहले से किए हुए हैं। अब हम फिर फाउंडेशन ये कि बस मेरा एक बार रिवीजन हो जाए, हम मेंस साथ में चलाना चाह रहे हैं, और देखो, ऑप्शनल मेरा कंप्लीटेड है। रिवीजन के लिए फाउंडेशन करना तो टाइम वेस्ट है ना यार। उस चीज का मतलब जब सर नोट्स उस है वक्त तुम्हारे पास। ध्यान नहीं दिए और हम सोचे कि कुछ मिस ना हो गया होगा मेरे साइड से, तो हम उनका फाउंडेशन भी ले लिए। शॉर्ट नोट्स ठीक है, साथी का भी 4 1 पेजर ठीक है, बट उसमें बहुत लंबा है, 400-500 पेज पहुंच जाता है सब्जेक्ट का। सर तो इसको ऐसा कैसे चॉप आउट करना चाहिए एक कहीं बेटर से वे देखो, में? आप ये चीज तुम ढूंढ सकते हो ना यार, ये मैं कि कौन सा वाला बेटर रहेगा, वो चीज, हर चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट, टेलीग्राम। वो चीज में ऑफिशियली यहाँ पर ऐसा कुछ करना है सही नहीं है ना। तुम जो फिलोसफी वही है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉलोड बाय थीमेटिक नोट्स का 1 या 2 रीडिंग, फॉलोड बाय हम्म। डेली आंसर राइटिंग एंड मल्टीपल मल्टीपल आइटरेशंस ऑफ द सेम। ठीक है, तो वही चलता रहेगा। अब तुमको वन पेजर कौन सा उठाना है, तुम्हारे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, वो देख लो तुम, मतलब साथ ही में मिलता ही है वैसे भी। हम्म। माइंड मैप यूज कर लो उनका, माइंड मैप भी ठीक है, बट इतने डिटेल्ड एग्जांपल्स नहीं है माइंड मैप में। हाँ ठीक है। सर, तो अभी अगर टाइम है 27 के लिए, तो वो अपना नोट्स बनाना चाहिए कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए नहीं नहीं, जैसे वो कर रहे, नंबर ऑफ नोट्स इटरेशन बढ़ाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑफ कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि तुम्हें पेपर में नोट्स नहीं बनाना है, सोचना है हम्म। ना? ठीक है, और ये रूल ऑफ थंब रखना कि 1:15 या 1:20 के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारे थीम्स रिपीट होने लग जाएंगे। लेट अस ट्राई टू अचीव 1:20 टिल February एंड। ठीक और है, सर ये 1:20 हर माइक्रो थीम टॉपिक का है, मतलब हर गवर्नर का सब्जेक्ट का, अगर हर सब। सब्जेक्ट का। अच्छा, सिर्फ सब्जेक्ट। पॉलिटी का मान लो अगर एक क्वेश्चन आता है, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाएंगे तो इट विल गेट, ऑल द क्वेश्चंस विल रिपीट। और सर ये माइक्रो थीम मतलब ये 1:15 का रेशियो पकड़ने के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू यूज किया जा सकता है, किसी पीवाईक्यू फोकस पीवाईक्यू कर रखना लो, है? पीवाईक्यू कर लो, टेस्ट भी कर लो, एक ही बात है। मतलब अच्छा। टेस्ट वाले भी ना इसी फिलोसफी पे तो क्वेश्चन बना रहे हैं। कौन सी चीज न्यूज में, कौन सी चीज सिलेबस में, कौन सी पीवाईक्यू में आई है, तीनों को देखते हुए क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करके इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इवेल्युएशन पोर्टल दिखा देता हूँ 2 मिनट में, कि जो है ना नीम प्रेप का ये कैसे काम कर रहा है। ये ऐसे neemprep.in पे गए। ठीक है, मैं अपनी एक कॉपी पुरानी अपलोड कर देता हूँ, जीएसटी टेबल। एक बार मैं इवेलुएट करके, ओ सॉरी, एक सेकेंड, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पार्ट भी, इन पोर्टल को भी एक बार वो हो जाएगा कि कैसे यूज कर रहे हैं, अभी भी काफी लोग हैं। ठीक है,
ये अपलोड करके 2-3 मिनट में इवेलुएट कर देगा। तब तक अपन आते हैं, अपलोड हो जाएंगे तब तक अपन डाउट्स दे देते हैं। अच्छा सर, एक और चीज, आप ऑप्शनल में हाँ बोले थे कि पीवाईक्यू को, मतलब आप मैकेनिकल ऑप्शनल के लिए, पर मेरा भी टेक्निकली ऑप्शनल है, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। सेम तो सेम है सर नेचर यार, नेचर सेम है। मीन्स सिर्फ मतलब पीवाईक्यू अगर अच्छे से कर लिए तो वो ऑप्शनल कंप्लीट है। पीवाईक्यू को सारे टाइप्स, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए, उनमें से टफेस्ट वाले को रिवीजन के लिए रख। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ यार, बोलो बोलो, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, मेरे को मैकेनिकल ऑप्शनल के रिलेटेड डाउट मैकेनिकल का मैं एक सेशन, मैकेनिकल का एक सेशन में करूंगा, ठीक है, मैंने था। अभी कमेंट्री सर पढ़े मैं मैं। फर्स्ट ईयर में हूँ, हाँ। बीटेक मैकेनिकल, आईआईटी गांधीनगर। अच्छा। सर मेरे को ये था, अच्छा। सर लेकिन फिर भी मतलब यार एक आवाज कट जा रही है बेसिक आप वो अरमान, बता तुम्हारी यार। सकते हो क्या, जैसे कि होंगे तो उनके। हेलो, एक सेकंड। हम्म, अब आ रही है सर? हाँ हाँ बेटर है। सर, बस यही डाउट था कि अभी जैसे कोर के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं हुए नहीं है, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स ही हुआ है अभी तो, कि फर्स्ट ईयर में हुआ है। हम्म तो हम्म उसके मैं साथ साथ चाहता हूँ कि मतलब हर चीज़ हो जाए, तो ज़्यादा मटेरियल मेरे को मिला नहीं उस पे भी। सिर्फ नेक्स्ट आईएएस की वो मिली, एक मतलब एक कोर्स था, वो वही मैं लेने का सोच रहा था। तो फ्रेमवर्क बता सकते हो कि मैं साथ साथ अभी कॉलेज में करूँ तो मैकेनिकल ऑप्शन साथ साथ ही तैयार होता जाए। एक ना, अ, वैसे तो मतलब मैं, तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं बता देता हूँ कहाँ से करो, लेकिन यार थोड़ा सा कॉलेज फर्स्ट ईयर लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो, वो भी एक अरे सर एस्पेक्ट है, कर रहा बट हूँ, ये वो तो कर रहा हूँ सर, मतलब ऐसा है कि वो तो हो ही जाता है ठीक अपने है आप ठीक ही। है। एक हाँ। मैं तो को तो ये सही लगा था, इनका रिकॉर्डेड लेक्चर एस ऑनलाइन होता है, इनका एस ऑनलाइन एकेडमी, पता नहीं, नहीं ये अलग है, सिंगापुर का है कुछ। इनका रिकॉर्डेड आता है, रिकॉर्डेड वाले में फायदा ये होता है कि अपनी स्पीड से देख सकते हो, ठीक है, तो एक आध सब्जेक्ट हो जाए तो उसका रिकॉर्डेड देख सकते हो, कुछ कुछ है इनका, वो पता नहीं है, वो तो तुम्हारा है, बाकी टेलीग्राम पे अगर मिल जाए तो वो भी ठीक है। तो बाकी कॉलेज कॉलेज के अलावा लेक्चर देखने जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे शिफ्ट नहीं, हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी कर सकते हो अगर समझ आ जाए, बट वो ना, मुझे तो मतलब अपने कॉलेज से एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि हमारे प्रूफ वगैरह पे ज्यादा फोकस था, न्यूमेरिकल्स पे कम फोकस होता है हाँ हाँ कॉलेज हाँ, में। मैं भी थर्मल में भी जैसे हाँ प्रूफ वगैरह पे ज्यादा फोकस रहा है। हाँ। हाँ तो उस चीज के लिए तुम बेटर हो जाएगा अगर तुम ले लोगे कोर्स, या फिर डायरेक्ट एक बार करके देखो, एक सब अभी तुम्हारे पास, यू हैव टू मच प्रिविलेज ऑफ टाइम कि तुम फेल, एक दो बार अपना स्ट्रेटजी फेल भी करके देख सकते हो, ठीक है, हम्म तो वो सब्जेक्ट करने के बाद पीवाईक्यू लगा के देखो। हम्म, हर टाइप का हम्म। आइडेंटिफाई कर लो। एक काम हम्म, करना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना, हाँ हाँ। तो वेडीजी का वो आता है, प्री और मेंस के बीच में ईएस के मेंस का बैच चलता है, ईएस के प्री और मेंस के बीच में अभी चल रहा होगा, ईएस हम्म। का प्री हो गया, मेंस मई जून में है, तो हम्म, वो बैच बहुत अच्छा है, ठीक है, बट ये दिक्कत है कि तुम उसको थर्ड ईयर से पहले कर नहीं सकते जब तक सारे फाउंडेशन को हाँ सारे हाँ कोर्सेज हो हाँ। जाए, ठीक है। हम्म। वैसे जीएस से करो, जीएस आसान चीज है, जीएस करो। सर जीएस में मैं सारथी आईएएस में एनरोल्ड हूँ। वो लेकिन एक अच्छा चीज अच्छा। पूछनी थी, आप उस करिकुलम से गुजरे हुए हो, तो आपको पता होगा कि ये जो 3 महीने की छुट्टी होती है समर में और 1 महीने की विंटर में, इसमें भाई मैं मैं चिल करता मतलब था, मैं चिल करता था, मुझे नहीं, पर हाँ लेकिन करना मैं कर हाँ सकता हूँ क्या, मतलब फाउंडेशन सारथी आईएएस? करो, आजकल क्या ही है, वो तो 3-4 महीने में हो जाएगा फाउंडेशन, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर 1.25 1.2 मतलब 2x नहीं की तो ये स्पीड पे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, मतलब मैं कोई वो तो नहीं कर रहा ना ज्यादा। नहीं 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 नहीं, जब तक समझ आ रहा है तब तक सही है, ठीक है। हाँ हाँ। चलो, ये सब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है, धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो अपने आप से अपने आप दूर होते जाएंगे, ठीक है। हम्म। चलो। और सर ईएस और मैकेनिकल ऑप्शनल साथ में मैनेज हो सकता है? यस, डेफिनेटली, अगर मैं इस विजडम के साथ अगर पीछे जा सकता था तो मैं मैकेनिकल ऑप्शनल के साथ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करता पहले, बाद में साथ साथ ये देता, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब कर सकते हैं, शॉर्ट में डाउट करते हैं यार, काफी लोग वेट कर रहे हैं, ठीक ठीक है है, ठीक है ठीक कि है सर। अपन 5 बार है 6 बार है, जब तो मिलते रहेंगे, हाँ तो सर ठीक है, क्वेश्चंस का वही है ना, एस एकेडमी और नेक्स्ट आईएएस के और पीवाईक्यूज। जो सही लगे देख लो तुम एक बार, ठीक है सर। थोड़ा रिव्यू ले लो। हाँ, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है सर। Hello, sir. Sir, as you were the part of the Next IS Foundation course, sir, how did हाँ, Next IS help you, and what value addition you did in the notes, and from where you did it? Is देखो notes ना, enough? प्री के लिए इनफ है, Is नॉट फॉर मेंस, प्री के लिए सफिशिएंट है, अगर तुम्हें पूरे अच्छे से समझ आ गया है तो प्री में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसको समझने के बाद थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस करके लॉजिकल पार्ट और पीवाईक्यू से एग्जामिनर माइंडसेट वगैरह डिकोड करके प्री में काम निकल जाएगा, मेंस में नहीं हो पाएगा, मेंस के लिए टू मच वर्बोज है और ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं ना क्लास नोट्स उतने, ठीक है। हाँ। yes. उसके बाद तो उसके लिए मैंने बोला कि
इसलिए मैंने बताया ना आइटरेटिव पाइपलाइन की, पहले बेसिक फाउंडेशन कॉलेज से एक बार रिवीजन करके कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर कर लो, उसके बाद एक दो बार वन पेजर पढ़ लो, फिर डायरेक्ट लिखना शुरू करो। ठीक है, एक पाइपलाइन बन जाएगी। And for and for which subjects you refer to standard books apart from class notes? मैंने कभी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी, मेरे पास टाइम होता तो अलग बात होती, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ा मैंने, पर मुझे कभी नीड भी फील नहीं हुई, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड बुक जो पर्पस करती है वो क्लास नोट से हो जाता है। अगर मैंने क्लास अच्छे से करा है, क्लास के बाद उसको समझ लिया है अच्छे से, और हफ्ते में एक बार जो क्लास में पढ़ा है उसको फिर से पढ़ लिया, और जब सब्जेक्ट खत्म हो गया तो फिर से पढ़ लिया, तो प्री से पहले 5-6 रिवीजन हो गया था मेरा 2023 में। उसमें से मुझे समझ आ गया था, लेकिन यही था कि क्लास लेट खत्म हुआ तो 23 में मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया। ठीक है। And sir, for modern history and ancient history, what you did, मतलब यार मैंने क्लास basically? नोट किया, उसके बाद सबका वन पेज किया है। ठीक है, सेम सेम रूटीन फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है। Okay, sir. ठीक है, Thank you. एक बार ये मैं इवैल्यूएशन दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। कि ये था GS3 का पेपर डाला था मैंने इस साल जो लिखा था, तो इस टाइप का इवैल्यूएशन आ रहा है इसमें। किसी भी का कहीं का भी आप टेस्ट डालेंगे ना, तो इम्प्रॉम्प्टू मॉडल मॉडल आंसर जनरेट हो सकता है, क्योंकि बाकी जगह तो ये है कि उनका टेस्ट तभी होता है। एक ये चीज़ है, और वैल्यू एडिशन कंटेंट ये थोड़ा सा दो चीज़ें हैं यहाँ पर अभी। जैसा अविनाश बता रहा था कि यहाँ पर वो भी आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई उसको डिस्कशन करने का। तो कहीं का भी कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, पर्टिकुलरली PYQ वगैरह, तो इजी हो जाएगा। वैल्यू एडिशन में एक स्पेसिफिक कीवर्ड, जैसे मैं कह रहा था ना कि कीवर्ड का बैंक बनाने में भी हेल्प कर सकता है। फैक्ट डेटा शीट्स, ठीक है, फैक्ट डेटा ट्रेंड्स को, तो थोड़ा सा इजियर पड़ जाएगा। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन पे जाइए, इसका इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका आंसर है, नीचे पे फीडबैक वगैरह आ जाता है कि आंसर ये है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एक्शन आइटम्स की क्या करने से जो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे PYQ वगैरह प्रैक्टिस करेंगे ना साल भर, तो उसमें फिर इवैल्यूएशन का इशू आएगा, तो उसको ये कर सकते हैं, उसका मॉडल आंसर भी जनरेट हो जाएगा, उस थीम से रिलेटेड वैल्यू एडिशन कंटेंट भी। और यहाँ पर नोट्स जनरेशन का भी फीचर आने वाला है शायद, जैसा अविनाश बता रहा था मुझे कि, तो उससे वन पेजर नोट्स बन जाएंगे। तो अपन यही ट्राई कर रहे थे ये लोग होलिस्टिक बन जाए। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू एडिशन कंटेंट आ गया, क्या थीम है, एनालाइज द रीजन बाय इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी टू हिमालयन रीजन टू लैंडस्लाइड्स, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर देयर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो ये कीवर्ड्स आ गए, पता ना, कीवर्ड बेस्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड बेस्ड रीजनिंग से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। हाँ, फैक्ट डेटा ट्रेंड्स जो भी है, ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड है, तो अगर किसी को ट्राई करना हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? सर मैं ऐसे पूछा था कि अभी मैंने नेक्स्ट आई से लगभग 5-6 महीने हो गए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए हुए। अभी सर मैं ऐसे पूछा कोचिंग की नोट्स सफिशिएंट, उसके बाद डायरेक्ट वन पेज नोट्स स्टार्ट कर दूं या स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए? स्टैंडर्ड बुक से क्या मिलेगा? जो क्लास में नीरज सर बता रहे हैं वही लक्ष्मीकांत में लिखा है ना, उसके बाद ओके। शॉर्ट में बनवा दे रहे हैं। और सर ऐसे पूछा था कि जो नेक्स्ट आई है इसमें वीकली क्लासेस चलती है करंट अफेयर्स की, आपने वो फॉलो की या आपने करंट अफेयर्स कहाँ से किया था? पहले अटेम्प्ट में वही किया था, 23 में वही किया था, और 24 में मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधे फैक्ट शीट रट दिया था। कि टाइम बहुत कम था, अगर टाइम मिले तो कर सकते हो, लेकिन डेली न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाना तो बेकार काम है, एक सर डेढ़ घंटे आपने की। न्यूज़पेपर पढ़ा था क्या हाँ, डेली? मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था मैंने। कोई मुझे, जिनको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में दिक्कत नहीं है ना, कि एकेडमिक लैंग्वेज लिखने की दिक्कत नहीं है, उन लोगों को न्यूज़पेपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को एटलीस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इट इज नॉट अ वेरी हाई ROI थिंग। ठीक है, जब तक करंट से क्वेश्चन आता भी बहुत कम है, प्री में भी आता है तो उसका स्टैटिक पार्ट ही आता है, वो नेक्स्ट ईयर वाले CAP में करवा देते हैं, या फिर कावा में भी सर करवा दे रहे होंगे, विपिन सर। ठीक है, तो ये सब वहां से कवर हो जाता है। ठीक है, और मेंस में जो आता है वो एक्चुअली क्वेश्चन तो करंट पे नहीं आता है, कुछ कुछ थीम्स आती हैं उसको। मेंस 365 की भी समरी जो आती है ना, 365 मान लो एक सब्जेक्ट की 120 पेज की, तो समरी 10-20 पेज की आती है, 20-30 पेज की, तो वो पढ़ के निकल जाओ। तो उसके बाद बाकी चीजें मैंने ऑटोमेट कर दी थी ना, कि मैं किसी भी वर्ड का अगर मुझे मीनिंग पता है तो मैं टेम्पलेट से 10-15 पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ, ये सब एबिलिटी डेवलप करनी थी, तो थोड़ा सा इजी हो जा रहा था। ठीक है। और सर मैं ये पूछा, ये जो वन पेजर नोट्स आपने बोला ये वाइजराम की फ्री इनिशिएटिव है या पेड कोर्स है, ये पेड पता PDF नहीं है? भाई, मैं तो मेंस टेस्ट सीरीज बैच में था तो मुझे मिला था, बाकी है कि नहीं, पर इन जनरल देखो, हर चीज तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है ही ना, इफ यू कैन बी अ और, गुड सर्चर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब करंट अफेयर्स यदि आपने किया मंथली या कंपाइलेशन पढ़नी चाहिए या ईयरली कंपाइलेशन?
मैं ये बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब तक तुम्हारा बाकी की चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तब तक करंट को कम फोकस करो। अगर तुम्हारे आंसर राइटिंग स्टाइल सही हो गई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे हो, क्या कहते हैं, मल्टीपल रिवीजन्स हो चुके हैं स्टैटिक के एंड उसके उसके बाद करंट को तुम मंथली कर लो, उससे पहले ईयरली कर लो, या ईयरली की भी सिर्फ समरी पार्ट कर लो। ठीक है, करंट को शुरू में ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। ठीक है, ओके सर, ओके, ओके। थैंक यू। बाद में जब बाकी सारी चीजों का आउटपुट तुम्हें मिल चुका हो उसके बाद करंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो पहले के कंपैरिजन में। ठीक है। ओके सर। हेलो राहुल सर, आई एम ऑडिबल? यस। हाँ सर, दो डाउट था। एक तो सर मेंस का प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं हुआ है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो अभी इसलिए कब मैं अटेम्प्ट है? ओवरथिंक कर रहा था उसको। सर दिस इज अटेम्प्ट सेकंड कब? अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं नहीं, 25 में था। हाँ 26 में दे रहे हो ना? हाँ जी सर। तो हाँ। सर ये मेंस और ये जो विंडो होगी प्री और मेंस वाली, सर उसमें मैं कैसे ऑप्टिमल वे में वो करूँ कि, और उसका आप थोड़ा टाइमलाइन बता सकते हो कि पहले मैं सोच रहा हाँ, था सर शॉर्ट नोट्स के लिए, बट अभी आपने सेशन में बताया कि बेटर टू गो विथ जो कितना बना ऑलरेडी पाओगे बने यार? हुए। तुम बताओ, तुम पूरा पूरा बनाने भी लगोगे तो पूरा प्री और मेंस का बीच का चला जाएगा, वो एक्चुअली 2027 की तैयारी शुरू हो जाएगी, है ना? हाँ सर, तो तो फिर वो, हाँ, कहीं से भी ना कंसाइज वंस पिक कर लो। ठीक है। जैसे स्मैशर था या शून्य यस का आता है, प्रहार भी ठीक है, तो उनको पढ़ते रहो और शुरू से प्रैक्टिस जरूर करनी है। डेली आंसर लिखना शुरू करो 1 तारीख से। एक मान लो 3-4 दिन एक्स्ट्रा मैनेज करके 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए, मान लो तुमने पॉलिटी और गवर्नेंस रिवाइज कर लिया, उनके आंसर लिखना शुरू करो। वो एक पाइपलाइन बन जाएगा कि दिन में 1-1.5 घंटे लिख रहे हो, और क्या कहते हैं, 6-7 घंटे रीडिंग दे रहे हो, जिसमें से 3-4 घंटे ऑप्शनल का होगा, 3-4 घंटे जीएस का होगा। ठीक है। या 2 घंटे लिख लो, 1 घंटा ऑप्शनल, 1 घंटा जीएस, जैसा तुम्हें सही लगे। लेकिन लिखना शुरू से स्टार्ट करना है, ताकि जो चीजें, इनोवेटिव चीजें सीख रहे हो, जो नई नई चीजें सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। जब तक वो चीज सुनने से काम नहीं होगा, जैसे आज भी अपन सुन रहे हैं, अगर इसको मसल मेमोरी में नहीं एम्बेड करोगे तब तक डिफिकल्टी होगी वो 3 आवर में उन चीजों को ला पाने में। ठीक है। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस स्टार्ट करना है शुरू से। ठीक ओके है। सर। एंड ऑलमोस्ट ऑल नोट्स आर सेम, जिस चीज को 4-5 बार ना पढ़ सको उसको कभी मत पढ़ो। ओके ठीक है। सर, इसमें जैसे कि एक अप्रोच ये भी बताया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मोर नंबर ऑफ मॉक्स, आपको ज़्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे ही। तो यस, सर आप उसमें वर्क क्या द सेम, सजेस्ट करोगे? वर्क द सेम, यस। आई वुड से कि मोर नंबर ऑफ पीवाईक्यूज इन द डेली आंसर राइटिंग पार्ट, एंड लास्ट में टाइम को टेस्ट करने के लिए मोर नंबर ऑफ टेस्ट वुड बी बेटर ऑप्शन। ठीक है। तो मान लो 1 जून से 15 जुलाई तक पीवाईक्यूज लगाया, डेली 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। उसके बाद जब लास्ट का 1 महीना आया तो टेस्ट देने के लिए किसी कोचिंग का ले लिया, ताकि, या फिर जैसे विजन अभ्यास दे लिया, सिमुलेटर दे लिया, जो भी। ठीक है। या फिर किसी कोचिंग के फुल टेस्ट दे लिए। ठीक है। तो वो उसमें, क्योंकि आपको स्पॉन्टेनिटी भी टेस्ट करनी है ना, क्योंकि इस साल पीवाईक्यू में कुछ नए, कुछ मतलब इस साल जो आएगा क्वेश्चन उसमें कुछ तो नए आएंगे ही। तो स्पॉन्टेनिटी टेस्ट करने के लिए, टाइम टेस्ट करने के लिए लास्ट के 1 महीने वो दे लिए, शुरू में पीवाईक्यू लगा लिया। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। मैं फॉलो करता रहूँगा सर गुड। इस अगले जी। सेशंस को भी। एंड इशरत पूछ रहे हैं कि एनी टिप्स टू क्रिएट लास्ट मिनट एग्जाम टेम्परमेंट फॉर प्रीलिम्स 2026? हाय इशरत, एंड लास्ट में देखो, ये जरूरी है कि लास्ट के 10-15 दिन अपन क्या कहते हैं, पीवाईक्यूज को 2-3 बार लगाएं, और क्या कहते हैं, उससे एग्जाम माइंडसेट को ना थोड़ा बहुत डिकोड करने में। अब जैसे कम लोग बचे हैं तो बता सकता हूँ कि ट्रिक्स वगैरह लगा लो। ठीक है। बहुत काम आते हैं, वीडियोस देख लिए यूट्यूब से, इन सब जगह से, उसके बाद पीवाईक्यूज में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। ठीक है। ऑफ कोर्स ये सब पार्ट तो नहीं जाएगा रिकॉर्डिंग में। हाँ। तो स्टैटिक कितने टाइम में ख़त्म कर लें? एज सुन एज पॉसिबल। जैसे अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं तो 1.5 की 2 की स्पीड से 1-2 लेक्चर करके ख़त्म करो यार 4-5 महीने में। अगर लेक्चर कोई कर रहा है तो नहीं, अगर कर रहा है तो, अगर नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स को इसी पाइपलाइन में ले आओ जो अपन ने डिस्कस किया। ठीक है। हाँ, शिवम, या जो भी है जिसको अविनाश ने बोला है। I'm Ashutosh from Next IAS. I'm currently pursuing the foundation course. सर एक मेरा डाउट ये था सर कि मैंने आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है, और क्योंकि थोड़ा सा 2-3 जो है क्लासेस में सेम कर रहा हूँ जैसे सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, तो सर एक चीज़ बताइए सर, थिंकिंग प्रोसेस को फास्ट कैसे कर सकते हैं, और जो एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से जो अपन मिस्टेक्स कभी होती मिले है। हैं क्या? अपन कभी यस मिले सर, हैं क्या? मिले मिले सर।
याद आ गया मुझे, चलो ठीक है, गुड। यस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर, मतलब कह नहीं सकता ज़्यादा। बाकी सर एग्जामिनर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मिस्टेक्स क्या-क्या हो सकती हैं और थिंकिंग प्रोसेस को फास्ट कैसे कर सकते हैं? मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्म। फ्री के लिए देखो वो सब तो अपन डिस्कस करेंगे ना, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, टेम्पलेट्स वगैरह, यस सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह का वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हुँ। अगर प्री के लिए है तो प्री के लिए सर वो चीज़ मेंस के लिए, रेडीमेड हो सकती है। हाँ मेंस अच्छा का आंसर राइटिंग ठीक मैंने है, स्टार्ट कर दी है सर। गुड गुड। तो तो थोड़े चैलेंजेस देखो आ रहे हैं मेरे साथ, कुछ कंटेंट के काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे साथ अभी भी। वही मैंने बताया ना सबको, और कि ऑलमोस्ट शुरू में थोड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेना है। जैसे मान लो जब बिल्डिंग बन रही होती है तो स्कैफोल्डिंग लगाते हैं, ठीक है। तो यस शुरू सर। में पहले तुमने पढ़ लिया, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है सोचते समय, तो ठीक है, यू कैन एक्सेस द कंटेंट ईदर वाइल थिंकिंग और जस्ट आफ्टर थिंकिंग, ठीक है। बट पहले आइट्रेशन ऑफ प्रिपरेशन के लिए ये काम कर लो, उसके बाद बट यू हैव टू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द डायमेंशंस, ऑल द, मतलब आंसर की स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन के साथ इनजस्टिस नहीं करना है पहले आइट्रेशन में। उसके बाद तुम्हारा हाथ उस तरह से सेट हो जाएगा और नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ चुके होंगे, तब कंटेंट के साथ भी इनजस्टिस को खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में टाइम को खत्म करना है, ठीक है। ओके सर। और सर जैसे ये मैंने कॉन्टेक्चुअल बेस्ड जो आपने जो इंट्रोडक्शन बताया था उसके अकॉर्डिंग कैसे थिंकिंग डेवलप होगी सर? यू हैव टू थिंक ये चीज क्यों क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ओके, क्या कोई मतलब फैक्ट है, क्या इंटर कोई रिलेट डेटा करते है हुए सर। हाँ ठीक है। अब शुरू में सारी चीजें करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले लो, ठीक है। ये मान लो आया क्वेश्चन, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल इन द गैंगेटिक प्लेन, इस साल आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब हो सकता है तुम्हारे पास ग्राउंड वाटर का डेटा ना हो कि यस सर। द ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर ईयर एंड यस दैट सर। इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द मोस्ट पॉपुलस बेल्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तुमने यस सारी सर। थिंग्स को लिंक कर दिया, ठीक है। हुँ। लेकिन शुरू में एटलीस्ट ये फील हो कि यहाँ पर एक डेटा होता तो मजा आ जाता, अब उस डेटा यस को सर। जाके सर्च कर लो। हुँ। सर स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम थोड़ा-सा होता है स्टार्टिंग में जनरेट यस करने यस में डेटा। यस, लेकिन इसके चक्कर में बस स्टार्टिंग को डिले नहीं करना है, यस सर। ठीक है। हुँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। How much AI helped you? It helped more in main, means more in essay, more in value addition generation. बाकी उस समय इवैल्यूएशन का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं, तो इवैल्यूएशन के लिए मैं स्टैंडर्ड कोचिंग पे डिपेंड था। मेंटरशिप के लिए आई वाज कनेक्टेड विद बीरेन सर एंड सजल सर एट वाजीराम एंड सारथी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स, मैं पूरा ऑनेस्टली जो भी है, ठीक है। क्यों ना देयर आर 5 मोर क्लासेस टू मिस, यस वही तो प्री 2026। देखो कम लोग बचे थे, मैंने बताया कि जितना पढ़ाई किया है 50 60 नंबर 70 नंबर आते हैं नॉलेज से, उसके बाद सारे नंबर आते हैं अच्छे, मतलब या तो जिसकी लॉजिकल रीजनिंग खुद ही बहुत अच्छी है वो वैसे भी 100 तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाना है 110 के ऊपर। 1500 क्वेश्चन वेव डिड यू प्रैक्टिस, हर 2013 से अभी तक के पीवाईक्यूज करो और टेस्ट करो, टेस्ट मिल जाते हैं हर जगह के, ठीक है। और मैं एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ, इसमें मैंने सिर्फ अपनी जो मैंने किया है वही नहीं बता रहा हूँ, अपनी गलतियां भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम मुझसे बेहतर भी बन सकते हो वेरी इजली, अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करने से ना। जैसे दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो कुछ चीजें में तजुर्बा भी हो गया ना 3 साल में। I think Rahul, what would you prefer कि आगे थोड़ा 5 सेशन में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हाँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डाउट डिस्कस हो जाएंगे, हाँ ठीक है। और सबको तभी भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोशिश करते हैं कि ऑन प्री क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, एक सेशन ऑन प्री, ठीक है। यार ये हर्षवर्धन भाई थैंक यू, आपने पूछा था कैडर का भी, कैडर वाला अभी आया नहीं है, आएगा तो सारे टेलीग्राम रोज आ ही जाता है, जिस दिन कैड सर्विस आएगी पहले, फिर कैडर आएगा नवंबर में, फिर नवंबर के बाद फॉरेस्ट का कैडर आता है जनवरी में, फिर अप्रैल में पुलिस का कैडर आता है। तभी तो 2024 वाले एग्जाम के पुलिस वालों का ही कैडर नहीं आया है, फिर इस साल 25 वालों का सिविल सर्विस का आएगा, सर्विस एलोकेशन। कैन यू गिव अ मोमेंट शिवम भाई, लेट अस हैव द मोमेंट। माइक्रो थीम्स यार, डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है बहुत सारी, मैं ये वाला भेज दूंगा कि कैसे वो कीवर्ड बैंक बनाना है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, उसमें शॉर्ट नोट्स रिफर किया, फिर मतलब पहले क्लास नोट्स पढ़ा, फिर वन पेजर पढ़ा, फिर टेस्ट लगाया, टेस्ट में जो रोज नए 5 7 थीम मिल रहे हैं उसको वन पेजर में उसको अपना कीवर्ड बैंक बना लिया, ठीक है। और वी होप आपको होम कैडर मिल जाए आपका, मैंने होम कैडर को 0 चॉइस कर दिया है, थैंक यू। हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, ऑलवेज अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन, मैंने हमेशा 100 क्वेश्चन किए हैं प्रीलिम्स में, दिस इज द बेस्ट शॉट टू गेट क्लियर।
और 80 के नीचे जाते ही बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, 90 के नीचे भी सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। आप वन पेजर किसके पढ़े थे? मैंने वाजीराम के पढ़े थे। GS2 में शून्य IAS के पढ़े थे, क्योंकि उनका उस समय तक वाजीराम का आया नहीं था। ठीक है, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर मेंस, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर मेंस, ये अब सब ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो करते हैं। बेस्ट, ठीक है, सब सेम ही। करंट अफेयर्स, नॉलेज, करंट अफेयर्स, PYQ और क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स, PYQ और क्वेश्चन सिलेबस को मिला करके सब लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करी, हाउ टू स्टार्ट वही तो डिस्कस कर रहे हैं भाई तब से। ठीक है भैया, इतना कुछ याद कैसे रखें मेंस के लिए? इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस दैट विल टेक टाइम। शुरू एक साथ नहीं होगा। द की एस्पेक्ट इज टू हैव एन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप सीधे 850 नंबर नहीं लाने लगेंगे मेंस में, आपको 500 से 400 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका रास्ता सही है तो आप कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे, रास्ता गलत है तो 600 पे सैचुरेट कर जाएंगे। हाउ टू मैनेज GS एंड मैथ्स, ऑस्ट्रेलिया मैथ्स वाला हैव डन विद यूपीपीसीएस मींस, यूपीपीसीएस मींस। ठीक है, ये चीजें, हाँ, जो हमने डिस्कस की है सारी चीजें यूपीपीसीएस मेंस में भी काम करती हैं, या BPSC मेंस में। जहां भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, दिस विल वर्क एवरीवेयर, दिस इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनर साइकोलॉजी, इवेल्युएशन मेथड। ठीक है, तो उनके लिए भी इक्वली गुड है। यार सेशन को आप पॉज करते हैं, वी विल टेक ऑल द। ठीक है, राजस्थान में अगर मिल जाए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस रैंक पे मिलता नहीं है। राजस्थान 20 रैंक के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, आई थिंक राहुल हमें ये सेशन कहाँ पॉज बात करना रोक चाहिए। देते हैं यार, ये हाँ, हाँ। अब तो 2 मेरे घंटे बस से जहाँ ऊपर भी हो मैं गए। गया हूँ आज, हाँ ठीक है, 2 घंटे। 2-2.5 घंटा हो गया है। हाँ, इट हैज एंड बीन अ ऑल्सो वेरी हम्बलिंग। हाँ, थैंक यू। सबके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर आगे 4 सेशन होंगे, एंड मैं अभी निकल रहा हूँ। अविनाश विल टेक ऑन फ्रॉम हियर, ऑसम। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर अच्छा लगा है, कीप कंटिन्यू, मतलब ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर किसी को और ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों को बुलाना है, उनको भी बुला लो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये चीज़ें अपलोड हो ना हो। एंड लास्ट तक 53 लोग रुके, दैट इज वेरी वेरी गुड। थैंक यू, हैव अ गुड डे। So, all right, guys. That's a wrap on session one. And huge thank you to Mr. Rahul Sekar for breaking it down in a way that no coaching ever does, and setting the baseline for what actually gets rewarded in UPSC. एंड मैं मतलब प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि राइट नाउ कोई भी आंसर लिखो या अपनी कोचिंग का कोई भी टेस्ट कॉपी उठाओ, एंड आवर प्लेटफॉर्म विल शो एग्जैक्टली कि कहाँ मार्क्स गए, मॉडल आंसर कैसा होता है और क्या वैल्यू एडिशन मिसिंग था, जो एक्चुअली राहुल सर ने शो कर दिया है। And also, like, if you haven't joined it, please join our Telegram channel, because everything happens there first, and lot of exciting things are going to happen here in coming days. And we are building something truly special for you guys. And honestly, we are like really glad that you guys are part of it. And your feedback will be really helpful for us to take it to the next level. एंड सेशन 2 के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे। सो सेशन 2 इज़ ऑन ट्यूसडे 7 अप्रैल एट 12 नून। हम फिर से जूम लिंक सबको भेज देंगे। ऑल दो द जूम लिंक आपने जिस पे ज्वाइन किया था वो सेम ही रहेगी। ऑल दो वी स्टिल हम आपको रिमाइंडर भेज देंगे थ्रू जूम एंड योर ईमेल आईडी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड सी यू ऑन ट्यूसडे। थैंक्स गाइस, थैंक यू गाइस।